तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर टॉप टाइम करा था। बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर पहले हमने बात करी क्या होता है। These are the parts of the constitution. If they are amended, the constitution will lose its essence, kind of a soul. ठीक है, वो लॉजिक था। हमने बात की कौन से केस में दिया गया था, केशव भारती केस में। In केशवानंद भारती केस, सुप्रीम कोर्ट emphasized on the idea of basic structure. ठीक है, and it's a very important case, हर जगह याद आता है मुंह उठा के। ये बहुत सुनने को मिलता है केशव भारती केस, very important part. Anyway, so उसके अलावा we did PIL. That is public interest litigation. Any idea that what is PIL? PIL फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई प्रॉब्लम होता है। वो तो ठीक है, what is PIL? वो तो सबको पता है PIL फाइल करता है, दूसरा बंदा बोल रहा होता है। PIL का आइडिया what is PIL? क्या होता है PIL, बताओगे तुम दोनों ज्वाइन की थी क्या? सर जैसे कि अपने एनवायरनमेंट पे बोला था कि कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो हम जाके कर सकते हैं PIL। बेसिकली देखिए सुप्रीम कोर्ट में वी हैव टू PIL इज अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन। आपने जैसे मास्टर आप स्कूल में एप्लीकेशन लगाते हैं ना कि मुझे छुट्टी चाहिए, ठीक है, तो द सेम केस में PIL इज नथिंग बट एन एप्लीकेशन, बट इट्स अ पब्लिक इंटरेस्ट एप्लीकेशन। इन दिस अ पब्लिक इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व। जैसे हमने बात की थी फॉर एग्जांपल if for example कहते हैं if the Delhi government decides to demolish this building, तो उस केस में you can go to Supreme Court। जा सकते हैं? कैसे जा सकते हैं भाई? प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट कहाँ है? हाई कोर्ट जा सकते हैं। हमने आर्टिकल 32 की बात, बेसिकली फंडामेंटल राइट ओवर हो गए तो थोड़ा इशू है। आर्टिकल 32 वी टॉक्ड अबाउट, इसमें डिफरेंट तरह की क्या होती है, रिट्स। इट हैज वेरियस रिट्स। It's this kind of order, assertion, something. Previously it was enjoyed by the king and the queens. Then we took that from them and gave that to the courts. Basically, logic क्या था? Division of power. We don't want one person to do everything. So courts have that. So we discussed various kind of writs. एक थी हमारे पास habeas corpus. तो revision के लिए habeas corpus. Basically it means to have the body of. If for example somebody is imprisoned, this writ is applicable to everyone. कोई भी व्यक्ति हो, for example Adil has captured this person. What is his name? Akash. Adil has captured Akash in imprisonment. कि तूने मुझे notes नहीं दिए क्लास के, ठीक है? In that scenario, his friend can go to Supreme Court directly with the petition of habeas corpus, asking that this person has been captured by the person, please free that person. The Supreme Court क्या बोलेगा? Bring that person to me, and then Supreme Court will analyze whether the detention is lawful or not. अगर lawful होगी तो रखा जाएगा, otherwise छोड़ दिया जाएगा। Habeas corpus. So basically in this we talked about a principle known as locus standi. LS. Locus standi. It basically means what is your stake. What is your stake? For example, in this case, the person who has filed PIL, habeas corpus petition, that person has nothing to do with these two people. इसका दोस्त है ना, blood relation में नहीं आता, केस में involved नहीं है, but still that person can file. इसे हम बोलते हैं liberation of locus standi. Locus standi mean what is your stake. अगर आप कोर्ट जाते हैं ना तो वो कोर्ट को बताना पड़ता है कि आप जो केस लेके आए हैं उसमें आपका क्या है. If this building is demolished and you are going to high court, so you have to tell to the high court कि आप क्यों आए भाई. जैसे for example you can in this case you can go to Supreme Court, sorry High Court. Why? Because you will say these were my institution, I am preparing for civil services, without it I am unable to prepare. तो आपका locus standi बन गया. वो एक अलग बात है, बट आपका locus standi बन गया. क्लियर है बात? रिकॉर्ड होता है नहीं, ज़्यादा मत बोला करो. फ्रीडम स्पीच में रेस्ट्रिक्शन है बहुत सारी. कौन सा क्या? फेस कौन सा दिख रहा है? सही आपको लगता है सर का है? Anyway, so हाई कोर्ट, सॉरी habeas corpus क्लियर है. इसमें कोई भी व्यक्ति जा सकता है फॉर द फ्रीडम ऑफ अदर पर्सन बेसिकली. अब if it becomes a public matter, then it's a PIL. Public matter, for example, मान लेते हैं some police officers have captured an entire village.
उन्होंने बोला ये सारे के सारे नक्सली सबको जेल में डाल दिया। तो इन दैट सिनेरियो यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट विद अ पिटीशन ऑफ habeas corpus बट एज अ पीआई, और इसमें भी लोकस स्टैंडर्ड नहीं लगेगा। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद कौन सी पिटीशन थी? मैंडेमस। व्हाट इज मैंडेमस? क्या होता है इसमें? Make the higher courts command the lower courts. What to do or what to not. पक्का है? चेक करो, मतलब कोई रिवाइज करके नहीं। सर्व इंडिविजुअल के लिए है ना सर, लोकस स्टैंडर्ड प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, लोकस स्टैंडर्ड तो लगेगा, पर मैंडेमस में होता क्या है? पक्का चेक करो, कोर्ट है या पब्लिक है? यस, कोर्ट के खिलाफ नहीं होता। कोर्ट के खिलाफ प्रोहिबिशन ऑफ सर्टिलरी है। In the mandamus means basically we command. In this, the upper court or the high courts and the supreme court here, they can issue a writ to say to authority do this or don't do this. For example, आप डीएम ऑफिस गए अपना सर्टिफिकेट बनवाने, कास्ट सर्टिफिकेट, उसने मना कर दिया, तो you will go to high court. सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जाओगे कास्ट सर्टिफिकेट पे, but you can go to high court and ask them, please sir, issue a writ of mandamus commanding that DM that person must issue my certificate. ठीक है? तो इसमें लोकस स्टैंडर्ड लगेगा या नहीं लगेगा? आप लोग नहीं, नए लोग जो क्या लगता है? लोकस स्टैंडर्ड समझ गए? तो वुड लोकस स्टैंडर्ड अप्लाई इन मैंडेमस? मैंने एग्जांपल क्या बोला? किसी का आजादी। अबे आजादी कहाँ से आई? मैंडेमस भाई। मैंडेमस में हमने क्या बोला? आप किसके पास गए? डीएम ऑफिस गए अपना सर्टिफिकेट बनाने। तो आप अपना सर्टिफिकेट बनाने गए थे ना, पड़ोसी का तो नहीं। तो इसमें लोकस स्टैंडर्ड लगेगा। एक मिनट सर, लोकस स्टैंडर्ड होता है पर्सनल के लिए। लोकस स्टैंडर्ड मतलब आपका क्या क्लेम है उस केस में। और पीआईएल में पब्लिक का क्या? पीआईएल में कोई भी पब्लिकेशन में आपका कोई क्लेम नहीं होता। मान लीजिए यहाँ पे कोई बच्चे भूखे, मान लीजिए बैगरी कर रहे हैं, तो आप पीआईएल लेके जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में कि ये बच्चे बैगरी कर रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी ने पढ़ाना। ठीक है? बेसिकली इट्स द रिलेक्शन ऑफ लोकस स्टैंडर्ड, क्योंकि वो बच्चे ना आपके हैं ना आपके भाई बहन हैं, और फिर भी उनके बिहाफ पे आप कोर्ट जा रहे हो। मैंडेमस क्लियर है? अगेन एक बार नोट से जाना, यू विल अंडरस्टैंड। अगर नहीं आता तो आई एम अगेन रिपीटिंग, कोई भी टॉपिक हो हम दोबारा कर लेंगे। ठीक है? बाकी जल्दी जल्दी है आपका प्रोहिबिशन एंड सर्टिलिटी। देयर टू अदर प्रोहिबिशन एंड सर्टिलिटी। प्रोहिबिशन काइंड ऑफ स्टे ऑर्डर, आपने देखा मूवियों में आता है, वो कुछ लेने आते हैं ये लोग, सारे स्टे ऑर्डर, पुलिस वाले चले जाते हैं। दैट इज व्हाट इट इज। इसमें क्या होता है? इट इज इशूड अगेंस्ट अ कोर्ट। अपर कोर्ट लोअर कोर्ट के अगेंस्ट इशू करता है। मान लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट जज है, इशूड एन अरेस्ट ऑर्डर अगेंस्ट आदिल। ये बहुत सवाल पूछता है, इसे तो जेल में डालो। ठीक है? ये हानिकारक है जनता के लिए, क्या कर रही है? इन दैट केस ही कैन गो टू whom? अपर कोर्ट एंड सेइंग कि ये जो ऑर्डर है इसे क्वेश किया जाए। दैट्स अ काइंड ऑफ प्रोहिबिशन। लेकिन रिमेंबर, यहाँ पे कोर्ट ने किसी भी तरह की जजमेंट नहीं दी है। कोर्ट है जस्ट ऑर्डर हिज अरेस्ट, मीनिंग केस इज गोइंग ऑन। तो प्रोहिबिशन इज फॉर अ केस दैट इज गोइंग ऑन। But say for example, if a case is done on Adil and the judgment comes after that he is arrested, then he can go with a petition of certiorari. दोनों में समझा? एक है प्रोहिबिशन, एक है सर्टिलरी। प्रोहिबिशन जब केस चल रहा है, मतलब केस इज गोइंग ऑन। इन दिस somebody filed a case against him कि ये मान लो फॉर एग्जांपल किसी का मर्डर करने वाला, इसने करा भी नहीं, घर पे बैठा है, पुलिस आएगी एंड अरेस्ट हिम। केस चल रहा है, इट इज नॉट प्रूवन कि ही हैज कमिटेड द मर्डर और नॉट, बट येट ही इज अरेस्टेड। टू अवॉइड दैट ही विल गो विद द रिट ऑफ प्रोहिबिशन। But if for example a case is taken forward against him, an entire case is done and final judgment comes, उसके बाद अगर इसे उस केस के खिलाफ जाना है तो फर्क समझ में आया? दोनों में जो लोअर कोर्ट से रोका जा रहा है, लेकिन एक में केस के दौरान और एक में एंड के बाद। तो समझ में? हीबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन एंड सर्टिलिटी, और लास्ट होती है आपकी वो बेसिकली व्हाट इज योर authority?
व्हाट इज योर अथॉरिटी, व्हाट इज योर पोजीशन। दिस रिट, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मोदी जी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर एंड यू बिलीव कि मोदी जी डिड नॉट क्वालिफाई द एग्जाम, इन दिस केस इलेक्शन रिजल्ट, इलेक्शन रिजल्ट वाज नॉट प्रॉपर, यू थिंक कुछ गड़बड़ थी इलेक्शन रिजल्ट में, so what you will do is you will go to Supreme Court with a writ of quo warranto। क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी आपकी खुद की थी, घर से लेके आए थे? नहीं थे। आप ना आने वाले प्रधानमंत्री हो ना जाने वाले प्रधानमंत्री हो, ठीक है, आपका उसमें कोई लेना देना नहीं, पर फिर भी आप सुप्रीम कोर्ट चले गए अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इट्स quo warranto। तो इसमें लोकस स्टैंडर्ड लगेगा? नहीं लगेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, द सुप्रीम कोर्ट विल आस्क द प्राइम मिनिस्टर कि शो अस योर क्वालिफिकेशन। इन दिस केस द प्राइम मिनिस्टर विल शो कि भाई मैंने जेन्युइन, आप देखिए जब भी कोई जीतता है ना एमपी एमएलए तो उसे इलेक्शन कमीशन सर्टिफिकेट इशू करती है। इलेक्शन के बाद सर्टिफिकेट इशू होता है, जब तक वो सर्टिफिकेट नहीं मिलता आप इलेक्टेड नहीं माने जाते। अब तो क्या करेंगे प्रधानमंत्री, वो सर्टिफिकेट दिखाएंगे सुप्रीम कोर्ट को कि देखो भाई सर्टिफिकेट है इलेक्शन कमीशन का दैट आई हैव बीन ड्यूली चोजन। अगर फिर भी डिस्प्यूट है तो इस अगली बार किसे बुलाएगी, इलेक्शन कमीशन को, कि आपने सर्टिफिकेट इशू करा, सबूत दिखाइए ये सही है। ऐसा हो सकता है सर, कोर्ट में? बिल्कुल हो सकता है, कोर्ट कुछ भी कर सकता है, न्याय जस्टिस इज वन। बहुत सारे लोग क्या लेकर के करके डालते रहे वो वारंट। अरे तो कोर्ट भी बिल्ला थोड़ा ना बैठा है, प्रधानमंत्री के खिलाफ डालोगे तो सुनेगा थोड़ी ना, यही बोलेगा कि भाई नालायक कुछ काम किया कर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है। अगर आप यू आर वेस्टिंग द कोर्ट्स टाइम, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है तो आपको सजा होगी, आपको भी डर है, फालतू नहीं है, कोर्ट आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जेल भेज देगा। तो जाओ बेटा अब एक काम करो, 3-4 दिन चक्की पीस के आओ, ठीक है, थोड़ी अकल वापस आएगी तुम्हारे पास। ठीक है, तो दीज आर द रिट्स, ये हमने लास्ट किया था आर्टिकल 32। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर सब समझते हैं, पीआईएल हो गया और दीज आर द सम रिट्स दैट वी डिड, ठीक है। अगेन चाहिए नोट्स ले लेना, पढ़ लेना, कोई इशू आता है तो हम दोबारा कर लेंगे, कोई भी टॉपिक। अच्छा सर एक और बात सर, अच्छा इसमें एक और अच्छी बात है, आपसे मैंने बोला वैसे हर वीक एक डाउट क्लास हुआ करेगी। कब हुआ? मैंने बोला है उनसे, वो कह रहे हैं कि हर वीक एक डाउट क्लास करवाई करेंगे, तो सारे बैच होंगे जितने भी पढ़ाए हैं। तो जैसा ऑफलाइन की अलग होगी तो आप सारे होंगे और जितने और लोग हैं तो उसमें आप पूछ सकते हैं, तो आपने पढ़ा कुछ नहीं आया वहाँ पूछ लो। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम अगेन सेइंग करंट इवेंट क्लास ज्वाइन करिए सब लोग, रिवीजन होती है वहाँ पे, केवल बैठो और देखो, जब मानो कोई लोगों ना पकैती चल रही है बस सुन रही है। सर एक बात पूछ सकता हूं? हाँ पूछिए आप। ये डाउट सेशन ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन वालों का लोगों का, ऑफलाइन वालों का लोगों। यस लक्ष्मीकांत सर पेज बाय पेज पढ़ो कि स्किप कर करके पढ़ो? मैं समझा नहीं, skip जो करके। टॉपिक आप पढ़ाए जो टॉपिक आप पढ़ाए उसी को पढ़े कि और भी बहुत सारे उसमें तो सारा टॉपिक उसमें वो बेस, ये समझिए वो बेसिक है, उसके ऊपर आपको बहुत कुछ पढ़ना है, उसमें आप स्किप नहीं कर सकते, वो तो मिनिमम है, वो मिनिमम है। वैसे भी सर उसमें पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, इसका हेवर्ड्स पढ़ना चाहिए। बस लैंग्वेज को कुछ भी पढ़ लो, बट द थिंग इज दैट इज जस्ट मिनिमम। उसके बाद यू हैव टू टेप, यू हैव टू करते हैं केसेस नहीं होती हैं, केसेस वगैरह नहीं होते ना, वो आई एम अगेन सेइंग उससे आप प्रीलिम्स निकाल पाओगे, मेंस नहीं। लक्ष्मीकांत इज यूजलेस फॉर मेंस, बट ये है कि उससे आपको प्रीलिम्स का आइडिया मिलता है, यू गेट द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सर आपके नोट्स पढ़ने से तो भाई मेरे नोट पढ़ने से हो जाता बात ही क्या थी, बट द थिंग दैट आई एम सेइंग इज कि इनसे आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं, बट अगेन करंट इवेंट का इशू आता है सारा। यूपीएससी में सबसे प्रॉब्लम ये है, हम कितना भी पढ़ा लें, अगर आपने करंट इवेंट नहीं करा, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हमने फंडामेंटल राइट खत्म कर, कल मान लेते कोई इंपॉर्टेंट केस आ गया करंट फंडामेंटल राइट का, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उसी से पूछे, और सॉरी उस कहते हैं यूपीएससी ने उसी से पूछ लिया। फॉर एग्जांपल यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपकी राइट टू प्राइवेसी की जजमेंट आई थी, सुप्रीम कोर्ट यूपीएससी ने राइट टू प्राइवेसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था फंडामेंटल राइट से। भाई वो तो किसी बुक में नहीं होगा, क्योंकि वो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जजमेंट आई थी और मेंस में वो पूछा गया था। सो जीएस इज हाईली डायनेमिक। ये सारा, पर ये है कि मान लीजिए अगर आपको राइट टू प्राइवेसी मान लिया आपने जजमेंट पढ़ी ही नहीं थी, तब भी आप नोट से लिख देते हैं, क्योंकि आपको आइडिया तो होता है कि आर्टिकल 21 है कुछ, आप उसी के आसपास घुमाते कहानी कि आर्टिकल 21 ये कहता है, तो हाँ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई होगी, ठीक है। और फिर आपको देखो जजमेंट नहीं पता तब भी आप लिख सकते थे, आपको राइट टू प्राइवेसी के फायदे नुकसान तो सोच ही सकते हैं आप उस वक्त सोच सकते हैं ना, अगर मैं प्राइवेसी चाहता हूँ तो क्या फायदे होंगे क्या नुकसान होंगे, बस लिख दो। हाँ
माना वो आंसर उतना ऑथेंटिक नहीं होगा जितना होना चाहिए था, बट एटलीस्ट इट विल बी समथिंग। तो करंट इवेंट का बड़ा इशू आता है। दैट्स व्हाई हम देखिए हम वो कर रहे हैं जो लक्ष्मीकांत में नहीं है, उसमें जो लिखा है वो तो है ही, प्लस हम इसलिए सारी चीज़ें केस बेसिस पे कर रहे हैं, केस समझते हैं और इशू समझते हैं, ठीक है, हमारी इशू बेस पढ़ाई है। एनीवे, सो इट्स क्लियर, बोलो भाई क्लियर, कुछ पूछना है? यू हैव एनीथिंग इन माइंड? अगर ये रिवाइज करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, देन थिंग्स विल कम इन माइंड। हाँ, डीपीएस पे करेंगे। डीयू का सर नोट्स काम आ जाएगा सर। सॉरी, डीयू का डीयू का क्या? नोट्स डीयू आपको सिविल सर्वेंट थोड़ा बना रही है। अगेन फॉर एग्जांपल, आप ऑप्शनल के लिए बहुत अच्छा सोर्स है, पीएसआर का मुझे पता है, ये पढ़ाता हूँ मैं, उसमें बहुत अच्छा सोर्स है आपका क्या, इग्नू के नोट्स, इग्नू के जो बुकलेट है, बट दे आर नॉट फॉर सिविल सर्वेंट, उसमें सेलेक्टिव पढ़ना होता है। आप सब पढ़ोगे तो बेकार है, वो एकेडमिक्स के लिए अलग अलग है, यूपीएससी की रिक्वायरमेंट बहुत अलग है, कंटेंट सुनने में सेम लगता है लेकिन रिक्वायरमेंट बहुत ही अलग है, ठीक है। ओके, लिखिए, आप लिखिए आर्टिकल 34। आर्टिकल 33 कुछ नहीं है, बेसिकली इट एम्पावर्स पार्लियामेंट टू इनैक्ट टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन फंडामेंटल राइट। जैसे आर्टिकल 17 क्या है? अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी तो उस पर एक्ट कौन बनाता है? पार्लियामेंट। जैसे पार्लियामेंट ने बनाया, लोग 2 एक्ट डिस्कस किए थे, कौन कौन से डिस्कस किए थे? तो आपको थे आई थिंक अनटचेबिलिटी वाले में नहीं थे? लास्ट कौन सा आर्टिकल किया था? आर्टिकल 6 और 7 6 से 7 से मतलब शुरू ही हुआ था, बहुत स्टार्टिंग सिटीजनशिप पे गया मतलब, और फंडामेंटल से पूरा स्किप हो गया। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कर लेना। सर वो रिकॉर्डेड वीडियो भी है। पूछ लेना रिकॉर्डिंग वीडियो, बिकॉज ये अब रिकॉर्डिंग शुरू हुई है, कोई और टीचर की होगी ज़्यादा मुझे लग रहा है। हाँ, एनीवे कोई इशू आया तो फ़र्क आता है। देखिए हमारे जो नोट्स हैं ये हमारी टीचिंग के हिसाब से, ठीक है। अब वो क्या पढ़ा रहे हैं? नहीं, फर्क आ जाएगा सर। नहीं, हर टीचर का अपना अपना पढ़ाने का स्टाइल होता है। सम थिंग्स पीपल लाइक, सम थिंग्स पीपल डोंट लाइक। एनीवे, सो क्या था बताओ भाई, कौन से 2 एक्ट है जो हमने पढ़े थे आर्टिकल 17 में? एससी जो एसटी को, हाँ, SC ST एक्ट और सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट, और उसमें हमने SC ST को डिटेल में पढ़ा था बिकॉज दैट वाज एन इशू रिसेंट। तो उसमें इनैक्ट कौन कर सकता है? दोनों एक्ट किसने बनाए थे? पार्लियामेंट ने बनाए थे, ठीक है। सर एक बात पूछ सकते हैं, टोटल आर्टिकल्स सारे आर्टिकल हमें नहीं पढ़ते। अगेन रिमेंबर, सारे आर्टिकल आप देखिए, लक्ष्मीकांत में एक भी आर्टिकल मेंशन नहीं, आपने पढ़ी नहीं लक्ष्मीकांत? हम अभी खोल के भी नहीं देखे। यार तेरे बात क्यों कह रहे हो, एक पन्ना पढ़ना है छोड़ने वाली बात बोलेगा सर पढ़ रहे हो? लक्ष्मीकांत में आर्टिकल्स मेंशन नहीं है, उसमें ऐसे होता है प्रेसिडेंट होगा उसके इलेक्शन में सारा होता है, लेकिन आर्टिकल्स मेंशन नहीं होते बिकॉज दैट आल्सो मेंशन यूपीएससी परवाह नहीं करता। मेंशन होते हैं पर सिस्टमैटिक में नहीं, मतलब सब्जेक्ट वाइज होता है, और आर्टिकल भी आप प्रॉपर हम कैसे पढ़ते हैं, हमने पढ़ा ना आर्टिकल ये इस तरीके से डिटेल में नहीं इस मिलेगा, तरह से नहीं मिलेगा वो, फिर वो सिर्फ क्योंकि वो वैसे उन्हें भी पता है। अगेन सेइंग यूपीएससी डज नॉट केयर अबाउट आर्टिकल्स, क्योंकि वो आपको लॉयर नहीं बनाना चाहती, बट कुछ आर्टिकल्स आपको याद हो जाना चाहिए। तभी मैंने कहा आपको सब आर्टिकल्स जरूरत नहीं है, आर्टिकल याद है 19 काफ़ी है, उसके अंदर आपका 1A 1B 1C उसके बाद 2 3 वो जरूरत नहीं है। इफ यू रिमेंबर आर्टिकल 19 सफिशिएंट है, क्योंकि आपको तो केवल वहाँ पे अपना पॉइंट क्रिएट करना है, जस्टिफाई करना है, डिनाउंस करना है। आर्टिकल 19 काफ़ी है। हाँ, लॉयर होते तो बात अलग। ओके, नाउ राइट डाउन मार्शल लॉ। आर्टिकल 34 मार्शल लॉ। सर आर्टिकल कितना है मार्शल लॉ का? 34। तो व्हाट इज मार्शल लॉ? कभी सुना है? सुना तो होगा मूवी हाँ वगैरह। सर, निकलते साथ ही होता है, इतना पता है मुझे। क्या होता है? हाँ, आर्मी रूल होता है काइंड ऑफ। हम ये सुने सर, राइट स्विच के टाइम में मार्शल लॉ जब बन जाता है, घर से बाहर निकल तो गोली मारनी। क्या सुने? क्या सुने? नहीं, ऐसे हम सुने हैं कि मतलब राइट स्विच के टाइम पे अगर मार्शल लॉ लगता है तो घर से बाहर मार्शल लॉ नहीं लगाती सरकार राइट्स के टाइम पे, 144 लगाती है, वो अलग चीज। धारा 144। वो अलग चीज है। हमने करा था 144 फंडामेंटल राइट्स में, राइट? स्पीच में हमने करा था ना 144।
आप नहीं होंगे पेशेंट। और उसके इन दो आर्टिकल कर्फ्यू सॉरी कर्फ्यू क्या होता है? अच्छा कर्फ्यू नहीं, मैं देखो दो बंदे थे, मैं उससे पूछ रहा था कर्फ्यू। कर्फ्यू बेसिकली सस्पेंशन ऑफ लॉ होता है, पर मार्शल लॉ तो बहुत ही अलग, जैसे इसने बोला मार्शल लॉ इज मिलिट्री लॉ। मार्शल लॉ बेसिकली लॉजिक क्या है, ये इंडिया में नहीं लगा और आई वेरी थैंकफुल लगे भी ना, ठीक है। मार्शल लॉ इज जैसे पाकिस्तान में आई टाइम मार्शल लॉ लग जाता है, ठीक है। जब आर्मी वाले जब बोर हो जाते हैं कहते हैं मार्शल लॉ लगा लेते हैं, कुछ तो करना है जिंदगी में, लेट्स डू मार्शल लॉ, ठीक है। So martial law is basically military rule. It basically says when the normal constitution or the normal civil administration does not function, तब martial law लगता है। देखिए लॉजिक क्या है, सिंपल सा लॉजिक भी है। The simple सा लॉजिक that we have with respect to martial law is, देखिए आपको पता होगा 1857 में रिवोल्ट हुआ था, रिवोल्ट 1857। After that Britishers, देखिए there are few things you can say thank you to Britishers. One is civil supremacy. Civil supremacy and second rule of law. हालांकि both were flawed. अपने पार्टी दोनों अपने फायदे। The rule of law was there. These are the two principles you can thank Britishers for. First of all, Britishers may subdue Indians, may beat them, may imprison them, but everything was done by a law. ये नहीं कि मन करा कभी भी कुछ कर दिया। The entire administration, British administration, functioned on laws. Cruel थे laws, but थे laws. ऐसा नहीं whims and fancies पे कभी नहीं चला British Empire. तभी तो हम we have a record of British Empire. In 1857 revolt, we have the record from British side only. हमारे पास इंडियन साइड का रिकॉर्ड नहीं है। आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में 1857 का जो रिवोल्ट है ना, ऑल द रिकॉर्ड्स दैट वी हैव अबाउट 1857 आर ब्रिटिश रिकॉर्ड्स, बिकॉज दे ऑलवेज क्रिएटेड रिकॉर्ड्स, पेपर वर्क, उस पर हमेशा ध्यान दिया उन्होंने, हमने कभी नहीं दिया। और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे ऑल्सो डिस्ट्रॉयड द इंडियन हिस्ट्री। वो चाहते थे बहुत समय तक तो 1857 के रिवोल्ट को मेंशन करना ही एक अपराध होता, सीधा फांसी, जिसने मेंशन भी किया to erase from the memory, but ऐसे से erase नहीं होती basically. Anyway, तो देखिए रूल ऑफ लॉ को समझ के सब लोग basically they did rule India in a cruel manner, but everything was by law. अगर किसी को बेवजह गोली मारनी भी है उसके लिए भी वो कानून बनाते थे। Second, civil supremacy. After 1857 revolt, it started, कहाँ से स्टार्ट हुआ था 1857 में? किसने स्टार्ट किया था? मंगल पांडे मूवी देखी है? लॉजिक वही था बेसिकली, इट वाज अ कार्ट्रिज वाला इशू था। न्यू राइफल्स वर इंट्रोड्यूस्ड, दे हैड अ कार्ट्रिज जिसको बिटन ऑफ करना पड़ता था बिफोर फिलिंग, और दैट वाज बेसिकली मेड ऑफ बोथ बीफ एंड पोर्क। इस्लाम भी अफवाह मतलब ऐसा प्रूवन नहीं है, अफवाह हो सकता है। अरे अफवाह कुछ भी हो, बट लिटरली तो यही बोला गया कि उसको बिटन ऑफ करते थे, मटेरियल था उसका वो यूज था। अब आप मेडिसिन खाते हैं, आपको क्या पता किस किस चीज़ की बनी, उसमें से कितनी मेडिसिन बीफ पॉक से बनी, किसे पता? डायबिटीज वाला जो मेडिसिन आता है वो बीफ से बनता है। A lot of things that we eat, हमें क्या पता कहाँ पे क्या है। Anyway, वो एक अलग डिबेट है। So after that, basically it basically hurted the religious sentiment of both the communities, Hindu भी और Muslims भी। तो after that, British instituted a mechanism to ensure कि civil supremacy always remain। इसीलिए तो आप देखें ना, हमारे जो आर्मी में रेजिमेंट है कास्ट बेस्ड रेजिमेंट, हालांकि अब उनमें सिलेक्शन कास्ट बेस्ड नहीं होता। When British instituted चार्ट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट जो भी है, they were instituted only for those people। अब नहीं होता, अब तो आपको सिख रेजिमेंट में नॉन सिख भी मिल जाएंगे। इसका सिख रेजिमेंट से इसका छोड़िए, अभी जो इंडिया की आज़ादी के बाद इंडिया पाकिस्तान हुआ था, सिख रेजिमेंट के जो ब्रिगेडियर्स मान थे, हाँ वो सिख रेजिमेंट को हेड कर रहे थे खालसा। यू गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि हमने बदला, चलो वो तो एक अलग चीज़ है। एनीवे, तो यू गॉट द पॉइंट सिविल सुप्रीमेसी। अब हम इसकी बात कर रहे हैं मार्शल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में। मार्शल लॉ इज अ वेरी स्पेशल सिनेरियो वेयर द सिविल सुप्रीमेसी एंड्स एंड द मिलिट्री कम्स इनटू पावर। बट इन इंडिया फॉर्चुनेटली आर्टिकल 34 प्रोवाइड्स आपका मार्शल लॉ, द गवर्नमेंट कैन इम्पोज मार्शल लॉ इन अ एरिया, एंड इन दैट सिनेरियो द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट एरिया विल बी। लेकिन गवर्नमेंट कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट ना, हाँ भैया, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट वैसी पावर नहीं होती।
ये अधिकार सिर्फ इंदिरा गांधी का, ठीक है। बेसिकली देखो इंदिरा गांधी को कुछ भी बोल सकते हो, बीजेपी सरकार है। जब बीजेपी सरकार हट जाए तो मोदी को भी बोल लेना, ठीक है। तो ऐसी बात चलता है। अरे यार, एनीवे कंसेप्ट क्लियर है सबको। The logic of military rule, the civil administration will be suspended and the military will govern. In this case, we ensure, because in India there is a civil supremacy. ये बड़ा परेशान कर रहा है। That's why we also ensured with respect to आपका CDS। देखिए CDS का भी सेम इशू था, सुना है CDS? हाँ सर, ये Chief of Defence Staff। For a long time we also feared, because हमारे आसपास अगर आप देखें ना, military rule came in 1971, बांग्लादेश को आज़ादी मिलती, 1975 मिलिट्री रूल, पाकिस्तान तो पहले ही मिलिट्री रूल, म्यांमार में भी मिलिट्री रूल लगता है, मिलिट्री रूल लगता रहा। तो हमारे नेबर में इतना मिलिट्री रूल लगा कि आवर पॉलिटिशियन ऑलवेज फियर्ड मिलिट्री, एंड दैट्स व्हाई फॉर अ लॉन्ग टाइम किसी ने सीडीएस बनाने की कोशिश नहीं करी। सीडीएस इज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, द टॉप बॉस ऑफ द ऑल आर्म्ड फोर्सेस कंबाइंड। बॉस में से कोऑर्डिनेटर बोल सकते हैं, बॉस ही बोलते हैं, कोऑर्डिनेटर है वो तो ऑब्वियस बात है, पावर्स की लिमिटेड है। But whenever there is a war, he is the top commander in chief, a single point of contact for the government. ऐसा सीडीएस का पोस्ट मतलब इसलिए बनाया गया था जैसे कि अगर आर्मी को एयरफोर्स का मतलब बैकअप चाहिए होगा, तो ये मतलब आर्मी चीफ डायरेक्ट नहीं बोल सकता है एयरफोर्स मार्शल एयरफोर्स के चीफ से, उसको सीडीएस को बोलना पड़ेगा और सीडीएस जाकर के बोलेगा एयरफोर्स। तो इन दैट सिनेरियो बेसिकली सीडीएस आप नोटिस कीजिए हमारा उसमें, लेकिन सर सीडीएस कोई भी मतलब कमांड नहीं कर सकता कोई भी फोर्स को, बोलने सीडीएस कैन गिव ऑर्डर, आप उसे रोक नहीं सकते पहली बात तो। जैसे इंटीग्रेटेड कमांड पॉलिसी की बात होती है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, बारिश हुई काफी तेज हो रही है, एनीवे तो हाँ बिल्कुल। तो सीडीएस बेसिकली हमने बनाने की कोशिश करी, अब बना दिया मोदी सरकार ने। अगला सीडीएस कौन है पता है किसी को? आप यस बोले नो बोले? नहीं सर। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, मुझे लगा शायद बता के मोदी जी कहाँ है। एनीवे इट वाज अ ट्रेजिक इवेंट। लिखिए मार्शल लॉ के बारे में लिख लीजिए, कंसेप्ट क्लियर है सबको, व्हाट इज मार्शल लॉ, ठीक है ना। अगेन और आपको लॉजिक भी पता है, इट इज लिंक्ड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, स्पेशली सीडीएस का इशू, बिकॉज़ वी वर वेरी फियरफुल ऑफ द मिलिट्री। और मैं हमेशा कहता हूँ मिलिट्री कैन कमांड आवर रिस्पेक्ट बट नेवर आवर कंसेंट टू गवर्न। हमारे नेता करप्ट हैं, रेपिस्ट हैं, मर्डर हैं, जो भी हैं हमने चुने हैं, और जिस दिन बुरे लगेंगे उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन द थिंग इज हमारे चुने हुए, वी डू नॉट वांट अ रूलर जो हमारा चुना हुआ ना हो। अच्छा चलो इस पे बात कर ही लेते हैं। और आर्मी हालवे में गाड़ी बैठती अगर आर्मी रूल लगेगा तो हमें उखाड़ के फेंकेंगे। बिल्कुल। आप सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, आपको ओनली थिंग दैट इज प्रिवेंटिंग गवर्नमेंट फ्रॉम पुटिंग अ गन ओवर योर हेड क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट। सरकार के बच्चे तो कभी भी आपकी पट्टी को बंदूक रखते, हर सरकार ये चाहती है कि नो गवर्नमेंट लव्स अकाउंटेबिलिटी, नो गवर्नमेंट, आपको अकाउंटेबिलिटी पसंद नहीं होगी। गवर्नमेंट जो आपको पसंद है, पापा आपको पूछे प्रीलिम्स के पेपर के बाद बेटा कैसा गया पेपर, एंड यू विल बी लाइक अभी मत पूछो मूड खराब है। वो कहिए मैंने इतना पैसा लगाया, इतना खिलाया पिलाया बड़ा किया, ठीक है, आई वांट अकाउंटेबिलिटी। अगर मैं 1 लाख रुपए ट्यूशन फीस दे रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट चाहिए, एंड यू विल बी लाइक अरे छोड़ो ना, कोशिश तो की मैंने, ठीक है। सरकार भी यही है, कोशिश तो की है, कोशिश तो की हमने, क्या हुआ 15-20 लोग ही तो गलती से मर गए थे। हमने खाना सबको देने की कोशिश करी, कुछ लोगों तक नहीं पहुंचा। तो मतलब बेसिकली यू गॉट द पॉइंट, इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी। ऑलवेज रिमेंबर स्टेट में आसमान से नहीं गिरी है, हमने इलेक्ट किया है, हमने बनाई है। तो स्टेट एक चीज कही जाती है, स्टेट इज अ इंडिविजुअल रिट लार्ज, इंडिविजुअल रिट लार्ज मतलब जो इंडिविजुअल पर्सोना है वही तो सरकार का पर्सोना है। A lot of people says कि पुलिस को न्यूट्रल होना चाहिए। भाई पुलिस कैसे न्यूट्रल होगी? वो उसी समाज से आती है ना जिसमें वो गवर्न कर रही है। अगर समाज बायस्ड है, मान लेते हैं इफ दे आर बायस्ड फॉर कम्युनिटी, तो पुलिस भी बायस्ड है कम्युनिटी में, वो आसमान से नहीं आ रही, दे आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो सेम स्टेट इज नथिंग बट योर मैग्निफिकेशन, जो आपकी पर्सनैलिटी है वही सरकार बनेगी। पर यह हमें पसंद है, इनकॉम्पिटेंट हो, करप्ट हो, कुछ भी हो, हमारी चुनी हुई है, हमें मिलिट्री रूल नहीं चाहिए। अनलाइक अदर कंट्री, और ये बात हमारी मिलिट्री में बहुत अच्छी तरह समझते हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज इंडिया इज द ओनली थर्ड वर्ल्ड कंट्री जहाँ पे कभी कू नहीं हुआ।
India is a shining example of good democracy, functional democracy, shining example. इसमें मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा था, is democracy better than dictatorship for economic perspective? क्योंकि आप चाइना का एग्जांपल हर वक्त उठाते हैं लोग। Everyone says कि यार चाइना इज टाइटन जो स्क्वायर नहीं टाइननमेन स्क्वायर टाइटनमेन स्क्वायर में से कर बताइए जैसे टैंकी ये मुझे थोड़ा डेंजरस लगता है। अरे यू आर टेकिंग फन आउट ऑफ टाइननमेन स्क्वायर, काफी लोग मरे, वो मजा आया। नहीं सर ऐसे उनको बता दीजिए कि डिक्टेटर क्यों खराब है। नहीं अच्छा एग्जांपल फॉर्म में कह रहा हूँ, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में बात करते हैं। इट इज ऑफन डिबेटेड, जैसे मार्शल रूल के केस में बोला जाता है कि मेरिटोक्रेसी टर्म आप सुनेंगे। A lot of people says कि हमें डेमोक्रेसी नहीं, हमें मेरिटोक्रेसी चाहिए। जो मेरिट वाला हो वो रूल करे, बोलते ना कि नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए वाला लॉजिक, वो मेरिटोक्रेसी का लॉजिक है। और ज़्यादातर लोग ये मानते, खासकर जो आधे पढ़े हुए लोग हैं। आधे पढ़े हुए लोग कौन? जो पढ़े हुए लोग वाकई में, जिनके पास डिग्री है पर अकल नहीं है, ठीक है। देखिए हाफ लिटरेट इज मोर डेंजरस देन एन इलिटरेट पर्सन। इलिटरेट जो आप बोलोगे मान लेगा, हाफ लिटरेट आधी आर्गुमेंट फेंकता है, ठीक है। अगेन तो मेरिटोक्रेसी का आर्गुमेंट आता है, इस मेरिटोक्रेसी एंड डिक्टेटर मिलिट्री रूल क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ मेरिटोक्रेसी। वो कहते हैं वी आर गुड एट गवर्नेंस तो हम रूल करेंगे। पाकिस्तान में जितनी बार कू लगा, गुड गवर्नेंस के नाम पे लगा। मिलिट्री ऑलवेज सेड कि ये गवर्नमेंट करप्ट है, इनएफिशिएंट है, इनइफेक्टिव है, हम आपका देश चलाएंगे बढ़िया तरीके से। उस नाम पे उन्होंने कू जस्टिफाई किया। अब कू मतलब हाँ पता, वो मेरे को पता है। फिर ठीक है, तुम्हें कू ऐसे पूछो, वो ऐप की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। देयर टू बताइए व्हिच वन यू थिंक इज बेटर? क्योंकि चाइना का एग्जांपल हर बार दिया जाता है। चाइना इज मोर और लेस डिक्टेटरशिप एंड चाइना इज इकोनॉमिकली वेल प्रॉस्परस देन अस, बहुत ज्यादा प्रॉस्परस है एंड इज अबाउट टू बी नेक्स्ट सुपर पावर कह सकते हैं। लेकिन ऐसे इकोनॉमी में क्या करेंगे सर जहाँ पे अपना जान का ठिकाना ना रहे? सरकार को मत बोलो, घर में रहना तो मम्मी पापा कहते हैं ना, मम्मी पापा को गाली तो नहीं दे सकते। इमेजिन कि जैक मा को जब उठा करके ले जा रहा है वहाँ पे अगर कम्युनिस्ट पार्टी, तो यहाँ पे चलो पॉलिटिकली सेटल करते हैं कि डिक्टेटरशिप इज बेटर, सॉरी डिक्टेटरशिप इज वर्स, पॉलिटिकली सेटल कर देते हैं बात, इकोनॉमिकली बोलते हैं। आपने जो भी एग्जांपल दिया पॉलिटिकल एग्जांपल, मतलब लिबर्टी, फ्रीडम, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट, लिविंग स्टैंडर्ड, गुड हेल्थ, गुड एजुकेशन, इसमें चाइना इज बेटर देन अस इन एवरी इंडिकेटर। इकोनॉमिकली व्हाट डू यू थिंक? डिक्टेटरशिप इज बेटर? यस सर, आउटपुट आ रहा है तो बेटर है। आउटपुट आ रहा है। अब दैट्स हाउ मिथ वर्क्स। मिथ वर्क्स, चाइना का एग्जांपल लोग गलत कोट करते हैं डिक्टेटरशिप में। रिमेंबर चाइना इज अ पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप, इकोनॉमिकली चाइना एक लिबरल कंट्री और हमेशा से रहा, उसे बोलते हैं वो लिबरल नेशनलिज्म। चाइना इकोनॉमिक सिस्टम, इफ यू लुक एट द चाइनीज इकोनॉमिक सिस्टम, ज़ाई जिनपिंग से पहले की बात कर रहा हूँ, उसके आने के बाद तो बर्बाद होने लगा। China has always been more liberal than India economically. Politically, it's a dictatorship, no doubt. अब मैंने ये बात क्यों करी? क्योंकि recently a study was published by RMIT, Royal Melbourne Institute of Technology, Australia. They published a study in which they analyzed the economy and polity. What kind of government was there and what was the economic outcome from 1858 to 2010. Of around 168 countries, I believe. दुनिया की 168 big countries को they analyzed from 1858 to 2010 statistically. They saw when there was what kind of government was there and what was the economic conditions. दोनों को weigh किया and accept two examples. दो example को अगर हम छोड़ दें, basically आपका रवांडा का केस बनता है और आपका सिंगापुर। both became a prosperous country under a military, ठीक है, सॉरी under dictatorship rule. ली कुआन यू, ठीक है, रवांडा, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, ठीक है। These are the two exceptions when there was a authoritarian leader. आप समझते हैं व्हाट अथॉरिटेरियन ने बात की है? पता है ना अथॉरिटेरियन, व्हाट इज अथॉरिटेरियन? हमने पहले बात की थी, दो वर्ड होते हैं, अथॉरिटेरियन, एक टोटलिटेरियन। नहीं टोटलिटेरियन होता है एक आदमी के पास पूरा पावर, और अथॉरिटेरियन होता है मतलब एक पावर डिवाइड है एक आदमी के पास। हमने पहले कभी बात नहीं करी इसके बारे में, करी तो है। इसे लिख लीजिए, यू पीपल ऑफन फॉरगेट। देखिए अथॉरिटेरियन, टोटलिटेरियन।
अथॉरिटेरियन का मतलब नहीं, मैं डिक्टेट कर दूंगा, आई एम नॉट सेइंग दैट आई विल डिक्टेट दिस, बट द थिंग आई एम सेइंग इज प्लीज रिमेंबर, बहुत काम आता है, क्योंकि आज की सरकार को आए दिन आप सुनेंगे बोलते हैं मोदी गवर्नमेंट इज अथॉरिटेरियन, तो पता होना चाहिए ना व्हेन यू रीडिंग करंट इवेंट क्या वर्ड है। अथॉरिटेरियन मींस एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट डज नॉट गिव यू पब्लिक लिबर्टी बट पर्सनल लिबर्टीज दे। आप घर के चार दीवारी में क्या करते हैं सरकार का कंसर्न नहीं है, बट आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो पब्लिक नेचर की है, फॉर एग्जांपल क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, तब आपको आज़ादी नहीं मिलेगी, दैट इज अथॉरिटेरियन। टोटलिटेरियन इज व्हिच डज नॉट गिव यू लिबर्टी इवन इनसाइड योर हाउस। ये नॉर्थ कोरिया टोटलिटेरियन स्टेट है, चाइना आप कह सकते हैं लार्जली अथॉरिटेरियन, लार्जली, क्योंकि वो घर में नहीं घुस रही है। अब खासकर जब उसकी वन चाइल्ड नॉर्म थी तब वो टोटलिटेरियन थी, आप उसने डिसाइड कर लिया कि आप बच्चे में कितने करोगे। फर्क समझ में आ गया दोनों, अथॉरिटेरियन टोटलिटेरियन। अथॉरिटेरियन डज नॉट गिव यू लिबर्टी इन पब्लिक स्फीयर, व्हाइल टोटलिटेरियन डज नॉट गिव यू लिबर्टी एनीवेयर। फॉर एग्जांपल हिटलर ने ये तक फैसला कर दिया कि हु विल हैव वो कहते हैं क्या होते हैं मैरिज किन के बीच में हो सकती है, ही आउटलॉड मैरिज बिटवीन जर्मन्स एंड ज्यूज ना, दैट्स द एग्जांपल ऑफ टोटलिटेरियन स्टेट। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम क्यों बात कर रहे थे, बिकॉज दिस स्टडी हाइलाइट्स दैट एक्सेप्ट रवांडा एंड सिंगापुर, एक्सेप्ट from 1858 to 2010 there is not even a single example when there was a dictatorship and there was economic progress। एक भी एग्जांपल नहीं है इन दो को छोड़ के। तो व्हाट इट शोस, लेकिन रवांडा में बाद में तो ये भी तो हुआ, उसके बाद हुई थी जेनोसाइड के बाद की डेवलपमेंट। तो बेसिकली व्हाट इट शोस दैट स्टैटिस्टिकली इट इज प्रूवन, कोई आर्गुमेंट नहीं फेंक रहा है फ्री में, स्टैटिस्टिकली इट इज प्रूवन दैट अ डेमोक्रेसी इज स्टिल अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी अभी तक तो देखिए बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हो सकता है आगे चल के कोई न्यू इवोल्यूशन हो जाए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, तो नहीं कह सकते, बट फॉर नाउ डेमोक्रेसी इज बेस्ट। उसकी अपनी खामियां बट स्टिल इट इज बेस्ट, क्योंकि अब देखिए ये आर्गुमेंट आए दिन पेश किया जाता है, वी शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग रूलर। मोदी जी की टीआरपी सबसे ज्यादा क्या है, अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, फैसला लिया तो करना है, बट उसी फैसले से हमें मिलता है डीमोनेटाइजेशन। आप इकोनॉमिक कंडीशन देखिए भारत की, एंड यू कैन ट्रेस इट टू, मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाता बट टीच यू समथिंग कॉल्ड एज 4 बैलेंस शीट प्रॉब्लम, दैट इज व्हाट इंडिया इज विटनेसिंग करेंटली, और ये स्टार्ट हो गया डीमोनेटाइजेशन से। अरविंद सुब्रमण्यम इज द फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, उन्होंने एक पेपर लिखा था, उसमें दे हैव गिवन अ डिटेल्ड एनालिसिस। डीमोनेटाइजेशन में पैसा आपकी जेब से निकला, बैंकों में गया, बैंक ने वो पैसा किसको दिया, बैंक ने वो पैसा दिया एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये कंपनी होती है जो बैंक की तरह होती है पर बैंक नहीं होती, इतना समझिए। उन्होंने वो पैसा इन्वेस्ट किया रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट में, पर मान लीजिए मैंने घर बनाया, कोई खरीदने को तैयार नहीं, तो क्या फायदा इसका। और जब आप लोगों की जेब से मैंने पैसा निकाल लिया तो डिमांड कहाँ गई। इकोनॉमी में ऑलवेज रिमेंबर एवरी डिमांड क्रिएट्स दिस यूनिक सप्लाई। जब हमने बात की ना प्रोस्टिट्यूशन वगैरह की, तो वही तो रीजन है उसका भी, बिकॉज देयर इज अ डिमांड दैट्स व्हाई देयर इज अ सप्लाई। तो बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन डिमांड चली गई एंड वी आर बेयरिंग द, और कोरोना क्या करा, कोरोना वाज एन एडिशन टू डिमोनेटाइजेशन। तो गवर्नमेंट कहती है कोरोना की वजह से सब कुछ नहीं, वो एक एडिशन था, उससे पहले ही इकोनॉमी बर्बाद होना शुरू हो गई थी। और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सबने क्रिटिसाइज किया था। आई डोंट रिमेंबर इवन अ सिंगल स्कॉलर, रघुराम राजन से लेके जितने भी रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट है वर्ल्ड लेवल पे, एवरीवन क्रिटिसाइज दैट आर्टिकल। इस सिर्फ एक व्यक्ति के, केनेथ रगोफ एक व्यक्ति है, उन्होंने उसे प्रेज किया, उसके अलावा किसी ने प्रेज नहीं किया उस स्टेप को, डिमोनेटाइजेशन को। बट आई एम टेकिंग इट एज एन एग्जांपल कि एक सिंगल व्यक्ति जब रूल करता है तो वो गलती करता है, इट्स नेचुरल। देखिए अगर आप गलती करेंगे तो आपका जीवन बर्बाद होगा, लेकिन जब एक पॉलिटिशियन गलती करता है तो देश बर्बाद होता है। उसको छोड़कर वो एक अलग बात, जानबूझ के नहीं करता। आई एम नॉट सेइंग कि मोदी ने जान, अगर मोदी को पता होता कि डिमोनेटाइजेशन इतनी बुरी हालत हो जाएगी इकोनॉमी, वो कभी नहीं करता। लेकिन एडवाइजर भी तो बहुत सारे होंगे उनके। अरे यही तो पॉइंट है मेरा, जब एक स्ट्रॉन्ग रूलर होता है ना तो उसके आसपास के लोग नहीं बोल पाते, उनकी जबान नहीं होती। व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पर्सोना इन द रूम ना, तो आसपास के लोग नहीं बोल पाते उससे खुल के, और जिस लीडर के आसपास के लोग उसे खुल के नहीं बोल सकते वो गलती करेगा ही करेगा। दैट्स व्हाट डिफरेंट विद मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ऑलवेज हैड अ डेमोक्रेटिक अप्रोच, वो एक फैसला लेता था 10 लोगों से पूछता था। मोदी जी रात को उठे, एक बार देश बंद किया, एक बार नोट बंद किया, और बोथ प्रूव टू बी अ डिजास्टर्स। मैम सिंह उनकी गिल्टी इंटेंट नहीं था दोनों केस में, ही डिड नॉट थिंक
वो बुरा थोड़ा ना चाहेगा कोई व्यक्ति, वो चाहता थोड़ा ना था कि लोग मरे। तो जब ट्रांजिट हो रहा कितने वर्कर मरे थे, बुरी कंडीशन में गए, उनको पसंद थोड़ी ना आ रहा होगा वो सब देख के। बट द थिंग इज द वे ही थिंक्स, अ स्ट्रॉन्ग मैन इमेज, फैसला लिया तो मैं करूंगा। दैट्स द प्रॉब्लम एंड दैट हैज बीन कंक्लूसिवली प्रूवन बाय RMIT स्टडी। और ये सब बात हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज रिसेंटली देयर वाज अ Pew रिसर्च। Pew is an organization which carry out research. According to Pew research, more than 80% of Indians support some military form of dictatorship. यार आप होना चाहिए नहीं चाहिए पर लोग करते हैं, बिकॉज पीपल हैव अ स्ट्रॉन्ग मैन इमेज। आजकल के लोगों को मसीहा कॉम्प्लेक्स के चक्कर में लोगों ने मसीहा ढूंढने लग गए हैं आजकल। हर कोई अपनी प्रॉब्लम के लिए किसी और को ढूंढ रहा है। देश में बुरे हालात है तो देयर इज अ सेइंग ना, इफ देयर इज नो लीडर टू फॉलो देन यू मस्ट बिकम द लीडर। पर नहीं कर रहे लोग, पीपल आर वेटिंग क्योंकि मसीहा आसमान से उतरा है जो कहे तथास्तु हमारी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। भाई यूपीएससी क्लियर करना तो आपको ही तो पढ़ना पड़ेगा। कितने भी मेंटोर्स ले लो, कितने टीचर्स ले लो, क्या कर लेंगे? दे कैन गाइड यू एट मोस्ट बट द फाइनल एफर्ट इज योर्स। सेम गोज हियर। देयर आर टू मेनी प्रॉब्लम विद द सोसाइटी एंड एवरीवन इज लुकिंग फॉर अ मसीहा कि ये हमारे दुख को और खराब करेगा। बात क्लियर है? तो हम बात कर रहे थे प्यू रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में। तो वी हैव डिस्कस मेरिटोक्रेसी बेसिकली। लिखो आर्टिकल 34 इज नॉट इम्पोर्टेंट, पर ये जो डिबेट है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेस कॉन्टेक्स्ट विद द राइज ऑफ, आपने तो अटेंड की थी सैटरडे क्लास में, हमने बात की थी पर्सनल रिप्रोडक्शन बिल में टेक्नोनेशनलिज्म। इन कॉन्टेक्स्ट टेक्नोनेशनलिज्म इट्स इंपॉर्टेंट डिबेट। यस, ऐसे जैसे चाइना का जैसे बात कर रहे हैं, मतलब लेकिन उसमें मतलब कैपिटलिज्म को भी तो सपोर्ट करता है चाइना। तो बोला तो ना इकोनॉमिकली लिबरल है चाइना। आप चाइना का एग्जांपल देख लेते हैं, दोबारा से देख लेते हैं। चाइना जब तक माओ के कंट्रोल में रहा, ही वाज द पर्सन हु कैरियड आउट द चाइनीज रिवॉल्यूशन। चाइना जब तक जो मेन फाउंडर है चाइना का उसके कंट्रोल में रहा, इट वाज अ डिजास्टर। जब चाइना ने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना शुरू किया, इट स्टार्टेड टू ग्रो। और टुडे फिर शी जिनपिंग है जो करंट प्रेसिडेंट है, ही स्टार्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट द इकोनॉमी। देखिए उनके सामने इकोनॉमिक कंडीशन चाइना की बिगड़ती चली जा रही है, बिकॉज इज अ स्ट्रॉन्ग लीडर और वो फैसले लेते हैं इंसान वाले। जैसे हमारा एडटेक स्टार्टअप है ना हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल ये बायजूस है और ये स्टार्टअप जो बायजूस अनअकैडमी वगैरह सब चाइना फंडेड है। मैंने नहीं कर ऐसे कंप्लीट मत करा करो, बायजूस का स्ट्राइक कहीं भी नहीं, मैं नहीं कह रहा था। क्वेश्चन इज वी हैव एजुकेशन स्टार्टअप। एजुकेशन के साथ एक प्रॉब्लम होती है, हमने बात की ना, क्लास में कैमरा नहीं होना चाहिए बिकॉज इट क्रिएट्स सेंसरशिप। इफ देयर इज सम, इफ यू नो ना समबडी इज, देखिए यहाँ पे आप लोगों को मैं जानता हूँ बट आई डू नॉट नो हु विल वॉच दिस वीडियो लेटर ऑन। फ्यूचर में क्या पता कौन देखेगा, तो यू विल ऑलवेज थिंक फॉर फ्यूचर। आप आज को पढ़ा रहे हो लेकिन कल की सोच के कि कल कोई वीडियो देखेगा तो उसे भी ये समझ में आना चाहिए। ऑब्जर्वर इफेक्ट होता है, वो नहीं होना चाहिए क्लासेस में। और इसलिए क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज देन ओनली देयर कुड बी फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज। और यही चाइना की प्रॉब्लम है। चाइना इज अ मिलिट्री, चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री। If there will be free flow of ideas in China's education system, तो free flow of idea का मतलब liberalism भी flow करेगा और चाइना कैसे बर्दाश्त करेगा? That's why चाइना ने अपने पूरे एडटेक स्टार्टअप को बर्बाद कर दिया। जो पूरा एडटेक इकोसिस्टम था उसका शी जिनपिंग ने अपने पर्सनल हाथों से बर्बाद किया उसे रिसेंटली। ऐसे भी देखा जाए लिबर्टी हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट, अगर कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जज करना है कि वो अच्छा है या बुरा है, तो उसमें यही वो देख लिया जाता है कोई भी फ्री माइंड्स के लिए जगह है कि नहीं है। दैट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड ना। हाँ, ये यूएस में, यूएस देखिए यूएस को आप दुनिया में कितना भी क्रिटिसाइज कर लीजिए बट इन इंटरनल स्फीयर में यूएस जितनी लिबर्टी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी आपको। बहुत अच्छे। इसीलिए हर इंटेलेक्चुअल यूएस क्यों भागता है? मैंने आपको बताया था ना, फॉर एग्जांपल न्योम चोम्स्की की बात की है मैंने कभी। ही वाज द पर्सन हु कॉल्ड यूएस द फर्स्ट टेररिस्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। इज अ स्कॉलर, वहीं पे रहता है, वहीं पे खाता है और उसे डर नहीं है कि कल उसके बाहर कुछ लोग जो एम्प्लॉयमेंट पाते हैं फरवरी में वो लोग आके बोलेंगे बाहर निकलो हमें तुम्हें मारना है। इन अ क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री ही कॉल्स दैट हिज ओन कंट्री, जहाँ वो रहता है, खाता है, जीता है, दैट कंट्री ही कॉल्स द टेररिस्ट कंट्री। ही इज नॉट फियरफुल कि भाई कल मेरे को कोई टपका देगा। दैट्स द स्टैंडर्ड लिबर्टी। और जब ऐसा देश आज़ाद ऐसी लिबर्टी देता है तो उस देश की प्रोग्रेस ही होती है। फ्री माइंड ऑलवेज लीड टू प्रोग्रेस। कुछ कमी आया, आई एम नॉट सेइंग एवरीथिंग इज राइट, कमी तो सब में है, प्रोग्रेस। एनीवे आप जल्दी से लिख लो, दैट्स
द इंपॉर्टेंट डिबेट दैट वी हैड टू हैव. आर्टिकल 34 लिखा सबने? राइट डाउन. आर्टिकल 34 provides for the restriction on fundamental rights. Restriction on fundamental rights when martial law, MARTIAL, when martial law is in force. When martial law is in force in any part, martial law is in force in any part of India. Means martial law nationwide भी हो सकता है और पार्ट में भी लग सकता है. Next point, Parliament is empowered. Parliament is empowered to indemnify. INDEMNIFI. Indemnify. इंडेमनीफाई मतलब अगर आप कोई चीज बुरा करते हैं, मान लीजिए एक पुलिस वाला ड्यूरिंग मार्शल लॉ इफ दैट पर्सन किल्स समबडी, तो भी उस पे अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं लगेगा. सर एक बात पूछे सर, ये मार्शल लॉ और आफ्ता में क्या फर्क है? आफ्ता एक अलग चीज है. आफ्ता में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सस्पेंड नहीं हो रहा है. वहाँ पे आर्मी को स्पेशल पावर्स दी जा रही है. वहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वैसा ही है. अगर आपको कोई भी चीज करनी है, अगर आपके घर में पानी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, तो आप आर्मी ऑफिस हेडक्वार्टर नहीं जाओगे, आप डीएम के ऑफिस जाओगे. सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वही है, पुलिस वही है, लेकिन उसके साथ साथ आर्मी भी है जिसके पास स्पेशल पावर्स. वो स्पेशल पावर देता है, वो मार्शल लॉ नहीं है. क्लियर? ओके. पार्लियामेंट क्या लिखा हमने? पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू इंडेमनीफाई एनी पब्लिक सर्वेंट, for restoration, any public servant for restoration of law and order. Full stop. Next point, the term martial law. The term martial law is not defined. The term martial law is not is not defined in the constitution. In the constitution, full stop. In the same point लिखिए. Also there is no mention. Also there is no mention of the grounds of imposition. Also there is no mention of the grounds of imposition of martial law. Full stop. Last line लिखिए. However, it can be definitely said that during martial law, the normal administration is considered ineffective. The normal administration is considered ineffective, and the concerned region is governed by armed forces. मतलब it's a kind of temporary suspension of administration, civil administration. But it's a very fortunate thing कि इंडिया में ये पावर किसके पास है? लिखा हमने सेकंड पॉइंट. पार्लियामेंट में बाय लॉ इम्पोज मार्शल लॉ, या वो लॉ बना के कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर मार्शल लॉ. और आर्टिकल 34 एम्पावर्स whom? पार्लियामेंट. अगर इम्पोजिशन करना होगा तो कमांडर इन चीफ कौन है हमारा? सर पार्लियामेंट में भी मेजॉरिटी वोट चाहिए होगा तो
हाँ फिर आपको लॉ लाना पड़ेगा ना प्रॉपर। अभी तक हमें जरूरत नहीं पड़ी, आई होप ना अभी पड़े। अब इसमें देखते हैं राइट्स। अब लिखिए कंडीशन ऑफ राइट्स। कंडीशन ऑफ राइट्स ड्यूरिंग मार्शल लॉ। कंडीशन ऑफ राइट ड्यूरिंग मार्शल लॉ। तो क्या होता है, राइट सस्पेंड होते हैं। क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? अभी हमने एक्चुअली नेशनल इमरजेंसी नहीं किया है, तो ये उसके साथ पैरेलल अच्छा बनाता है। एनीवे, व्हाट डू यू थिंक? सब कुछ फंडामेंटल राइट सब कुछ सस्पेंड हो जाता है। राइट टू लाइफ रहता है। देखिए जनरली फंडामेंटल राइट्स पे पर से इफेक्ट नहीं आता है, बट आपके कुछ राइट्स पे आ जाएगा। मान लीजिए आपका आर्टिकल 19, अब मार्शल लॉ के वक्त आप बाहर घूम के चीख तो नहीं सकते ना, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जनरली फंडामेंटल राइट्स पे इफेक्ट नहीं आता। अगर आप इन्फोर्स कराना चाहते हैं तो कोर्ट से इन्फोर्स करवा सकते हैं। बट अनलाइक नेशनल इमरजेंसी, जब हम पढ़ेंगे नेशनल इमरजेंसी में आपके दो तरह के राइट सस्पेंशन होता है। एक आपका होता है इमीडिएट सस्पेंशन, उसमें जैसी इमरजेंसी लगती है वैसे आर्टिकल 19 खत्म हो जाता है। और दूसरा होता है फॉलोइंग सस्पेंशन, उसमें डिपेंड करता है प्रेसिडेंट के ऊपर कि कौन कौन से राइट्स को प्रेसिडेंट हटाना चाहता है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 30, सॉरी 21। 20 आपका है विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस एंड 21 है आपका विद रिस्पेक्ट टू पर्सनल लाइफ, विद रिस्पेक्ट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आपका जो राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 20 है आपका कन्विक्शन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑफेंस। ये क्यों रखा गया आर्टिकल 20 का लॉजिक आपको समझ में आ रहा है? वरना सरकार किसी को भी पकड़ कैद कर देगी कि भाई ये तो आतंकवादी है, और प्रूफ करने के लिए जरूरत नहीं क्योंकि आर्टिकल 20 है नहीं। अभी क्या है, अगर सरकार को पकड़ती है तो प्रूफ करना पड़ेगा कि आप आतंकवादी हो, क्योंकि आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन। ठीक है, तो लिखिए इसमें लिखिए जनरली some fundamental rights, generally some of the fundamental rights या some fundamental rights जो भी ना are affected during martial law. For example, Generally, some of the fundamental rights are affected during martial law. For example, freedom of speech and expression. For example, freedom of speech and expression. ठीक है, इसी के क्लब में मैंने जैसे आर्टिकल 30 स्किप कर दिया, पर तो कुछ खास था नहीं उसमें। कुछ नहीं है, बेसिकली रेस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट फॉर आर्म्ड फोर्सेस। आपकी आर्मी नेवी वगैरह के राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करता है, कुछ खास है नहीं। लॉजिक आप समझ, अच्छा ये लिखना भी लिख लेंगे आप, लॉजिक तो समझिएगा क्योंकि मान लीजिए आपकी आर्मी भूख हड़ताल पे चलेगी, फिर बॉर्डर कौन प्रोटेक्ट करेगा? तो कुछ फोर्सेस हैं जिनके राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट बाय लॉ रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, वो आर्टिकल 33 जो भी है। जैसे हमारा आर्मी एक्ट है, नेवी एक्ट है, एयर एक्ट है, एयरफोर्स एक्ट है, तो उसके तहत रेस्ट्रिक्टेड राइट्स आपका पुलिस के पास भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपकी IPS एसोसिएशन आपका स्ट्राइक नहीं कर सकती, पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं होते, बिकॉज दे आर फॉर लॉ एंड ऑर्डर। तुम ही नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर कौन बनाएगा? चलो एनीवे, तो इसलिए मैंने कहा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं, नेक्स्ट में गाना देख लेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब लिखिए केस स्टडी मेरिटोकेसी। एक ही था क्या है केस? हाँ बस फंडामेंटल राइट पे देखना था। लिखिए केस स्टडी मेरिटोकेसी। इसमें ये लिख लेते हैं, मुझे एक अच्छा क्वेश्चन याद आया, आप लोग जवाब दीजिएगा, उसमें भी पूछा गया था इंटरव्यू में। बेसिकली दे आस्क क्या हर व्यक्ति को वोट करने का अधिकार होना चाहिए?
नहीं सर, हर व्यक्ति को इंडिया में भी कहाँ है, आप एक सर्टेन एलिजिबिलिटी के लिए ही ना, Mental जैसे कि 18 प्लस होना आपको। अरे मतलब ये तो स्पेशल केस चलेगा, मेंटल हेल्थ वाले हटा देते हैं, क्रिमिनल्स ठीक है, अरे उनको स्पेशल केस छोड़ देते हैं, मेंटल हेल्थ क्रिमिनल्स अनसेंट छोड़ देते हैं, मानते हैं नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल सिटीजन है, नॉर्मल कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं है। तो क्या सबको ऐसे हर व्यक्ति को वोट करने का अधिकार होना चाहिए? यस हाँ, सबको अधिकार होना चाहिए। तो फिर हमारे पास हिटलर जैसे लोग आते हैं। हिटलर आया कैसे था? जर्मन जनता ने उसे वोट दिया, लेकिन फिर भी सर जनता से चुन करके आया था ना सर, कोई बाहर से तो जनता से चुन के अगर रेपिस्ट को लाओगे, मर्डर को लाओगे तो सही है। हिटलर जैसे व्यक्ति जो जेनोसाइड करते हैं क्या सही है? ये सब अलग अलग लोग की अलग अलग डिमांड होंगी। सर हिटलर का एक बात है सर कि वो बाद में चल गया कि डिक्टेटर बन गया था। मतलब अगर कोई माइनॉरिटी सर, है, मेजॉरिटी ज़्यादा है, उन लोगों की डिमांड अलग है, उन लोगों की अलग है, दोनों अपनी तो अपनी माइनॉरिटी को जगह स्पेशल प्रिविलेज दे दीजिए आप, किनको? माइनॉरिटीज को, अगर ऐसे ही बात करें। मिलेगी। जैसे हिटलर का अगर बात करें ना सर, हिटलर पहले आया था लोगों को से चुन करके, लेकिन फिर बाद में वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही हटा दिया, खुद डिक्टेटर। तो वो तो हर डिक्टेटर करता, आप इतिहास उठा लीजिए, जितने भी डिक्टेटर, नेपोलियन नाम सुना है? हाँ। आप पढ़ेंगे बोले, so he's a very important point, he is very much responsible for spread of modernity, so he is a very important point। वो भी पावर में कैसे आता है? दैट पॉइंट ऑफ टाइम लॉजिक क्या होता था कि ब्लड रिलेशन से आप किंग बनते थे। पहले ऐसा ही था, कोई भी किंग बन गया, आप अगर रिलेटिव हो कुछ हो तो ही किंग बन सकते थे, ये मेंटालिटी थी। तो उसने उस समय में रेफरेंडम प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके किंग बना था, उनकी मर्जी से आया, फिर तानाशाह बन गया। तो इतिहास में ऐसे लोग भरे पड़े, कौन नहीं आता रेफरेंडम से, कौन नहीं। फॉर एग्जांपल आपका ब्रिटेन का ईयू से बाहर निकलना, हमने बात की ब्रेक्जिट जिसे बोलते हैं। ईयू एक बॉडी, आप आईआर में पढ़ेंगे, ईयू इज अ कलेक्शन ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। जैसे हमारी साउथ एशिया में जितनी कंट्री है, इंडिया, पाकिस्तान वगैरह, इन सबको मिला के बनता है सार्क। ये कलेक्शन है हम सबका, हम सब साथ में बैठ के बेसिकली ग्रुप मान लेते हैं, आप लोग सोशल ग्रुप बनाते हैं वैसे ही मान लीजिए फिलहाल के लिए। ब्रिक्स भी ग्रुप है, तो बेसिकली इट्स अ ग्रुप ऑफ साउथ एशियन कंट्री, सार्क। ऐसे ही यूरोप का जो ग्रुप है उसका नाम है ईयू, यूरोपियन यूनियन। ब्रिटेन उसका पार्ट था, अब ब्रिटेन उससे अलग हो गया और सबको पता है वो गलत फैसला है, इकोनॉमिकली डिजास्टर पैदा करेगा वो ब्रिटेन के लिए। और फिर भी क्योंकि ब्रिटेन के लोगों से पूछा गया था, उनसे रेफरेंडम हुआ, उनसे पूछा गया भाई आप क्या सोचते हैं, तो उन्होंने बोला हाँ भाई हमें बाहर निकलना है। और एक बार लोगों ने बोल दिया तो करना ही पड़ेगा, पर एक गलत है, उस कॉन्टेक्स्ट में वो क्वेश्चन था। जब आप, हमें पता है कि कुछ लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं कि उन्हें, हमने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल याद है, आई टोल्ड यू ना, आज के समय में आप वोट नहीं करते हैं, आपसे वोट करवाया जाता है। आप जो व्हाट्सएप पे आपके पेरेंट्स को भी आता है, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं अनसेंड वाले, जो फेक वीडियोस होती हैं, फेक म्यूजिक, उससे आपके माइंड को मैनिपुलेट किया जाता है ताकि आप वोट कर सके एक पार्टी के फेवर में या एक पार्टी के अगेंस्ट। फॉर एग्जाम्पल देयर आर वेरियस मोर फोटोज ऑफ नेहरू एंड महात्मा गांधी, आप गूगल कीजिए, इतनी फोटो मिल जाएंगी, अनसेंड फोटो। आई एम सेइंग, आई एम यूजिंग दिस वर्ड अनसेंड। छोड़िए सर, इटालियन बार डांसर अगर टाइप कीजिएगा तो सोनिया गांधी। मैं बोलना नहीं चाह रहा था, तुम वर्ड्स बोल जाते हो भाई, कैमरे पे रिकॉर्डिंग होती है, और फीलिंग समझो, वर्ड्स का इस्तेमाल ना करो। बट यू गॉट द पॉइंट ना, a lot of things are happening और लोग सच भी मानते हैं, ऐसा नहीं कि लोग सच नहीं मानते, people are who still believe that, और उसके हिसाब से वो वोट करते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में है क्या ऐसे लोगों को भी वोट देने का अधिकार हो? अगर वो नहीं देंगे तो ज़्यादा बेटर, डेमोक्रेसी कैन रन इन अ बेटर मैनर। क्या लगता है? Again, democracy is all about people's representation. अगर पीपल वैसे है, उनको नेता भी वैसे ही मिलेगा। क्या गारंटी है सर कि अगर जो चुन करके, अगर उनको हटा करके जो इंटेलेक्चुअल उन्हीं को चुनने दे तो ये एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो क्या गारंटी है कि वो तानाशाह नहीं बनेगा? पहले आप गारंटी कार्ड लाओ कि वो तानाशाह नहीं बनेगा तो ठीक है। तो मैं टू दिस इज असाइन आर्गुमेंट, अगेन द थिंग इज इट्स पीपल चॉइस। ब्रेक्जिट में वोट किया, जनता ने किया, बुरा होगा, खुद सफर करेंगे, अकल आ जाएगी, फिर जुड़ जाएंगे। हिटलर के केस में हम मान सकते हैं कि तानाशाह चुना, उसका नुकसान ज्यूज को हुआ, अग्री। दे आर एग्जांपल जहाँ पे डेमोक्रेसी बहुत बुरा वर्क करी है, बट उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज बनाई जा सकती हैं। बट अगेन वी हैव टू जस्टिफाई डेमोक्रेसी। उससे बढ़िया फॉर्म गवर्नमेंट अभी नहीं है, उसकी वीकनेस है। जैसे हिटलर जैसे लोग राइज करते हैं और अभी भी रेफरेंडम का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, लोग अपनी पॉपुलैरिटी को जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी करते हैं। बट ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट केस, बट स्टिल डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और ये स्टैटिस्टिकली भी प्रूवन है, केवल लिबर्टी के प्रिंसिपल से नहीं, इकोनॉमिकली भी गुड है। तो लिखा सबने केस स्टडी, इट इज आर्ग्यूड
it is argued that the politicians are illiterate, ineffective, and uneducated. अगेन लिटरेट और एजुकेशन दो अलग चीज़ होती है। लिटरेट मतलब डिग्री, एजुकेशन माने नॉलेज, दोनों अलग चीज़ होती है। आपके जैसे आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो काफ़ी ओल्ड होते हैं, उनके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है, जैसे अ लॉट ऑफ थिंग्स जो उन्होंने किताबों में नहीं पढ़ी आपकी तरह, बट स्टिल दे हैव मोर विजडम देन यू। एजुकेशन एक अलग चीज़ होती है, लिटरेसी एक अलग चीज़ होती है। इसमें हंसने वाली क्या बात है? मैं दादी का याद आ गया सर, उनका बात तो लगता है कभी कभी हाथी पाँव नहीं उनका बात होता है। आप लोगों ने किताबें ज़्यादा पढ़ ली है ना, तो इसलिए आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। अकॉर्डिंग टू प्लेटो सेड दिस, फिर वहाँ से उड़ती हुई चप्पल आती है, चल कूड़ा बात रख क्या, ठीक है। प्लेटो सेड दिस, ओके। सो सर इसके टेक्नोक्रेसी भी है। डेमोक्रेसी भी आप कई सारे मतलब जितनी भी जो भी चीज़ डेमोक्रेसी के खिलाफ है ना, आप सबको एक तरफ क्लब कर लो, चाहे आपकी मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो, चाहे मेरिटोक्रेसी के जो अनशन के आर्गुमेंट पेश किए जाते हैं। अगेन मैं हमेशा कहता हूँ लीडर का काम पढ़ा लिखा होना नहीं होता, उसका काम आपको रिप्रेजेंट करना होता है। उसका एक ही तो काम है, जितनी भी विशेष है जनता की वो सरकार तक ले जाता है, रियल एग्जीक्यूटिव जो आप लोग बनेंगे। IAS अल्टीमेट काम करता है, और वो किसके कहने पे काम करता है? नेता के कहने पे काम करता है। वो नेता किसको रिप्रेजेंट करता है? जनता को। वो वादे करके आता है इन इलेक्शन, दैट पर्सन प्रॉमिसेस कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। आप उसके हिसाब से चुन लेते हो उसको। कुछ इंपॉर्टेंट लिख रहे हो क्या? कोई कलाकारी करो तो मुझे भी दिखा दो। ओके, राइटर में आगे लिखिए। According to Pew Research, PEW, according to Pew Research, PEW, right? According to Pew Research, around 55% of Indians supports a strong leader without any interference. Supports a strong leader without any interference from parliament or courts. Not any interference from parliament or courts, semicolons, while 53% support military. Sorry? While 53% supports military rule. सर 53% भी कुछ ज़्यादा नहीं है सर। है तो है, आप क्या कर सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग ना, आप समझ नहीं रहे हैं, इसके लिए आपको सैटरडे आना पड़ेगा, क्योंकि सैटरडे करंट इवेंट में यही बातें होती है। अगर ठीक है देख लेना, मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, या जो कॉन्टेक्स्ट आप समझना चाह रहे हैं ना, वो कॉन्टेक्स्ट हमने प्रीवियस सैटरडे में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर किया था। उसमें हमने पूरा 1 घंटे में ट्रेस किया था किस तरीके से वी आर हैविंग अ टाइम जहाँ पर रिलीजियस असर्शन हो रहा है, व्हाई पीपल आर गोइंग आफ्टर वन लीडर। छोड़ तो यार तुम्हारे देख ले थोड़ा बता दो। उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले काम रूल के से भी लेकिन अच्छा नहीं लगता है सर। मिलिट्री रूल तो मेरे को कहीं से भी अच्छा नहीं लगता है यार। आपको नहीं लगता तो आप 47% में है ना सर। पॉइंट फिर से बताना। कौन सा वाला? रिसर्च वाला। प्यू रिसर्च ने देखिए दोबारा मैं जल्दी से बताता हूँ। पहले पॉइंट में 108% हो जा रहा है ना। कहाँ से? अरे भैया कुछ लोग वो भी तो हैं जो दोनों चीज़ों को सपोर्ट करेंगे। अरे यार तुम भी कैसी बात करते हो? 108% समझे, वो 55 वो है जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें से 53 टोटल का है वो। ये बात आपको बताने वाला। अरे यार तो मुझे कॉमन सेंस है, 108 तो हो ही नहीं सकता कभी। चलो तो 108 से हम आते हैं 2008 पे, ठीक है। तो बेसिकली 2008 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस होता है।
आप इसे इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइसिस। बेसिकली क्या हुआ था, कुछ बैंकर्स, जैसे बॉन्ड पता है आप लोगों को क्या होता है? हाँ, 2008 का ये जो क्राइसिस हुआ था यूएसए की वजह से गैस बबल फट गया था इसका। गैस बबल नहीं, गैस बबल हाउसिंग बबल। एक सेकंड, ठीक है, मैं तो मुझे बॉन्ड पता है सबको क्या होता है, सब ठीक है, हाँ वो ठीक पता है। बेसिक जैसे आपका नोट, जेब में आप नोट रखते हैं, नोट पे लिखा है ना, पेपर होता है। I promise to pay the bearer this much of rupees, it's a bond between government and you, मतलब जो भी होल्ड करता है पैसे को, तो that is bond। एक पेपर होता है, उस पर लिखा होता है कि I promise to pay the bearer this much of rupees, this much of interest, इस तारीख तक जो भी होगा। आप उस बॉन्ड को, मान लीजिए 100 रुपये का बॉन्ड है, आपने खरीद लिया, तो इस केस में क्या हुआ था, what they did is, बॉन्ड में देखिए, बॉन्ड एक प्रकार की रिस्की इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं इशू करूँ बॉन्ड तो कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन अगर मोदी जी बैक करें मेरे बॉन्ड को, मोदी जी कहें कि इसके बॉन्ड को मैं बैकिंग देता हूँ, तो आप लोग खरीद लेंगे, बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग गारंटर मिल गया। तो इस केस में क्या हुआ, देयर वाज अ लॉट ऑफ बॉन्ड इशूड बाय कॉर्पोरेट सेक्टर। अब बॉन्ड पे देखिए, पेंशन फंड जो होते हैं कभी इन्वेस्ट नहीं करते। पेंशन फंड जो आपका होता है ईपीएफओ वगैरह जो होती है, वो आपके पेंशन का है, तो पेंशन फंड इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते, वो रिस्की वेंचर में नहीं जाते हैं, क्योंकि वो किसी की सोशल सिक्योरिटी है, दैट इज समबडीज सोशल सिक्योरिटी, तो वो करते नहीं है। तो उन्होंने क्या करा, दे इशूड बॉन्ड्स, इन्होंने बॉन्ड पे गारंटी लिखवा ली, उसके लिए होती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, उनका काम ही होता है रेटिंग देना। वो सिक्योरिटीज को बताती है कौन सी सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, कौन सी बेटर है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो देशों को भी रेटिंग देती है, ठीक है। तो उन्होंने रेटिंग दी हाई ग्रेड की। अब मान लीजिए हाई ग्रेड की रेटिंग है तो आप इन्वेस्ट करोगे, पेंशन फंड ने इन्वेस्ट कर दिया। अब उन्होंने गेम क्या करा, मान लीजिए मैंने आप सबको लोन दिया और मुझे पता है आप में से कोई भी वापस नहीं करेगा, पर मैंने पेपर तो है, पेपर पे लिखा है मैंने इसको इतना लोन दिया, इसको इतना लोन दिया, जो मुझे 10 साल बाद मिलना है, मुझे पता है आप में से कोई नहीं देने वाला। तो मैंने क्या करा, मैंने सारे पेपर्स को इकट्ठा करा, इसके ऊपर एक और पेपर बना दिया, उस पर मैं लिखा कि मैंने 10 लोगों को लोन दिया है, इतने रुपए का है, तो वो मेरा क्या बन गया, एसेट। आपने किसी को लोन दिया, वो आपका एसेट है ना, क्योंकि तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, उससे इनकम मिल जाएगी आपकी। तो उन्होंने क्या करा, वो लोन जो खराब थे, उन्हें पता था वो खराब है, उसके ऊपर उन्होंने एक पेपर बनाया, उस पर लिखा कि मेरे पे इतने करोड़ का मैंने लोन दिया है, इट्स अ सिक्योर्ड लोन। मैंने लिख दिया सारी बातें इस पेपर पे। अब आप तो खरीदोगे नहीं, तो मैंने उस पेपर को सर्टिफाई करवा लिया एक क्रेडिट कंपनी से, उसने सर्टिफाई करके दिया कि इसमें जो भी लिखा है वो सच है। तो उस पे अब आपको पता है, फॉर एग्जांपल आप जो नोट लेके घूमते हो उसमें गारंटी देती है सरकार, कोई गारंटी नहीं मिलती आपको। अगर करेंसी फेल हो गई तो आपको चवन्नी नहीं देगी सरकार, लेकिन आप लोग फिर भी उस पेपर का इस्तेमाल कर रहे हो, क्यों? स्ट्रॉन्ग गारंटी, विश्वास है कि सरकार है। नहीं तो वो एक लिखा हुआ रहता ना सेंटेंस, क्या प्रॉमिस करके कुछ, हाँ, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर दिस मच ऑफ रुपीस, वो झूठा सेंटेंस है, जबकि साइन है उसमें गवर्नर की। आरबीआई पे कोई सोना वोना नहीं है, आप सोच के मत बैठना कि आरबीआई सोना लेके बैठी है, अगर करेंसी फेल हुई तो आपके नोट के बदले में सोना मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्या होगा, मान लीजिए करेंसी फेल हो गई तो आप अपना नोट लेके जाएंगे, वो क्या करेंगे, कहेंगे अच्छा ये नोट लेंगे, वो एक नया नोट बना के दे देंगे, ये लो, ये चलता है। जैसे डिमोनेटाइजेशन में हुआ था, तो सोचिए सरकार आपसे झूठ बोल सकती है आपके मुंह पे, तो इस केस में क्यों नहीं? फर्क क्या आया, बिलीव। आप उस नोट को जेब में लेके घूमते हो क्योंकि कोई भी बाहर लेने से मना नहीं करेगा उस नोट को, क्योंकि दैट इज गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझ में आया? इस तरीके से इकोनॉमी हमेशा बिलीव पे वर्क करती है। तो यहाँ भी बिलीव आया, इन्होंने पेपर बनाया, उस पर लिख दिया मेरे पे इतने इतने पैसे हैं, उसे एक सर्टिफाई करवा लिए जबकि थे नहीं, और जब ये बर्स्ट हुई कहानी, उससे बनता है आपका 2000 का क्राइसिस। अब हम इकोनॉमिक की बात क्यों कर रहे हैं पॉलिटी में, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड टुडे। अब इस केस में किसने गलत काम किया, हु डिड द रॉन्ग वर्क, दोज बैंकर्स, दोज मर्चेंट बैंकर्स बेसिकली ना। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूएस गवर्नमेंट गिव अ $7 ट्रिलियन बेल आउट पैकेज। 7 ट्रिलियन, हमारी इकोनॉमी का 2 गुना, आज की इकोनॉमी का 2 गुना। $7 ट्रिलियन का बेल आउट पैकेज दिया, लेकिन किन को, बैंक्स। और उन बैंक्स ने जितने भी मर्चेंट बैंकर टाइप के लोग थे, ये रिटायर हुए विद पैकेजेस। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने याचेस खरीदे, प्लेन्स खरीदे, और जिन लोगों ने, जो गरीब लोग थे जिन्होंने बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, दे लॉस्ट एवरीथिंग। बेसिकली इसमें रिवॉर्ड उन्हें मिला जिन्होंने क्राइम किया।
इकोनॉमी में हमेशा होता है, इकोनॉमी में क्राइम करने वाला रिवॉर्ड पाता है। कि आपको क्या लगता है मर्चेंट बैंकर को 10-10, 20-20 लाख रुपए घंटे किस बात के मिलते हैं? उसको इसी बात के मिलते हैं, उसका काम होता है इंश्योर करना। इकोनॉमी बहुत पावरफुल होती है, इकोनॉमिकली इसे बोलते हैं इकोनॉमिक हाइस्ट, चोरी की लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से करी। इसमें आप ब्लेम नहीं कर सकते ना, आप इसके पास रहोगे क्या बोलेगा, ये तो बोलेगा भाई मैंने सिक्योरिटी बनाई थी, मैं तो मेरे को पेपर वर्क आया उसके हिसाब से मैंने सिक्योरिटी पर सर्टिफाई कर दिया। अब खराब हो गई वो लोन, जब वो कहेगा मैंने जब पेपर बनाया था मुझे पता था आप सबके पास पैसे हैं, आज आपके पास पैसे तो मेरी क्या गलती है? इकोनॉमी में ये होता है, हमारे एनपीए बनते हैं बैंकों में, करोड़ों के एनपीए। एक आम आदमी 2 रुपए का लोन ना पहुंच चुका है तो आपके घर के बाहर पुलिस आ जाएगी। लेकिन एक व्यक्ति करोड़ों का लोन लेके भाग जाए उसको कुछ नहीं कर पाती बैंक। क्यों? क्योंकि वो कहता है भाई जब जो बैंकर है वो कहेगा मैंने जब लोन दिया था तब ये व्यक्ति की कंपनी चल रही थी, आज ये बैंकरप्ट होगी तो मैं क्या करूं? इकोनॉमिक डिनायबिलिटी में बहुत बड़ी होती है और सेम चीज यहाँ हुई और ऐसा हर बार होता है। इकोनॉमिक क्राइसिस में देखिए करोड़ों क्या घूम रहा है, छोड़ो इकोनॉमिक क्राइसिस में। तो अब इसमें इशू क्या हुआ, द पीपल हु लॉस्ट एवरीथिंग दे डेवलप्ड अ हेट्रेड फॉर एलीट्स। उनके अंदर एक नफरत आ गई अमीर लोगों को लेकर कि ये लोग हर चीज से बच जाते हैं। कानून आप इस केस में देख लीजिए ना, आप कोरोना में बाहर निकले, आप पे डंडे पड़ गए आम आदमी पे, प्रधानमंत्री जो घूम रहे पूरी दुनिया में उनका तो किसी ने फाइन नहीं किया, मुख्यमंत्री सारे घूम रहे। अगर कानून सबके लिए बराबर है तो पहला फाइन तो उनका बनता है। तो इससे क्या होता है, इट जनरेट्स हेट्रेड फॉर एलीट। और ये जो मेरिटोक्रेसी की जो अभी हमने पढ़ा ना 55% सपोर्टर, ये उसी सिस्टम के विक्टिम है। These are the people who think that ये लोग करप्ट है। फॉर एग्जाम्पल मोदी जी कॉइन्ड द टर्म शहजादा फॉर राहुल गांधी। क्यों? उससे दे वांट टू गिव यू अ पैसिव सिग्नल कि ये व्यक्ति इलीट का हिस्सा है, वो इलीट का हिस्सा जिसका मैं नहीं हूँ। और हम चाय बेच के मैं चाय बेचने वाला हूँ, ये व्यक्ति इलीट है, हम झोला लेकर के चलेंगे। वो जो भी है, बट यू गॉट द लॉजिक। इट्स अ बेसिक, देखिए ही इज अ वेरी शूड पॉलिटिशियन, इसमें कोई डिनायल नहीं, and he understand this all around, and that's why people in India support, क्योंकि India is also a victim। डोनाल्ड ट्रम्प जैसे लोगों का राइज क्यों हुआ? इसीलिए हुआ। डोनाल्ड ट्रम्प when came to power he said I will drain the swamp। उसने बोला जितने ये अमीर लोग हैं सारे भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, मैं आपके लिए इनसे लड़ूंगा। हालांकि वो खुद भी तो अमीर है, $3.5 बिलियन का प्रॉपर्टी है। फ्रांस का प्रेसिडेंट कैसे बन गया मैक्रोन? बिकॉज ही इज एन आउटसाइडर। रिमेंबर दिस, आज आप एक फिनोमिना ऑब्जर्व करना आज से, आजकल पॉलिटिक्स में वो जीत रहा है जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं है। शायद तो मूवीज में भी हो रहा है यही। किस मूवीज में हो गया? हाँ? मूवीज में मूवीज में आप बात कर रहे हैं, ये सारा एक ही देखिए, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सोसाइटी सब साथ साथ चलते हैं, अलग से कोई नहीं पैदा होता। आज देखिए आज के समय में आपकी जो मूवी विलन्स पे बनती है वो पॉपुलर होती है। जोकर पे बनी, उसे आपको पूरा केजीएफ बनी, जो भी बनी, इसमें सब में क्या है, एक स्ट्रॉन्ग मैन दिखाया जा रहा है, स्ट्रॉन्ग मैन। और खास साहब वो कौन सी थी, पद्मावत में जितनी तारीफ रणवीर सिंह की हुई थी किसी की नहीं हुई, बिकॉज पीपल लव दैट पर्सन जो एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सन है, बिकॉज दैट पर्सन रिप्रेजेंट व्हाट, अ फाइट अगेंस्ट अथॉरिटीज। तो समझ रहे हैं, दिस इज एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ वन थिंग, और ये लोग समझते हैं, इसीलिए आजकल विलन्स की मूवी ज़्यादा बनती है। जोकर मूवी एक विलन पे क्यों फेमस हुई, उसमें आप मूवी देखिएगा जोकर मूवी, इट्स अ वॉकिंग टेल ऑफ 2010। एक मिनट, जोकर मतलब आप सर एक तो अलग से मूवी बना को जोकर, एक तो बैटमैन वाले जोकर जो इसमें मूवी बनी ना, जैसे ऑस्कर मिला है, उस मूवी को देखिए। डार्क नाइट वाला अलग है भैया, वो मूवी अलग है, मैं मूवी का नाम बता रहा हूँ, जो उसे ऑस्कर मिला है, वॉच दैट मूवी, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेंट। उसमें देखिए, उसमें यही चीज दिखाया जाता है, एंड में दिखाया जाता है देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट। उसमें कहा था बहुत से लोग ना सड़कों पे आ जाते हैं दंगे करने, तो उससे एक व्यक्ति पूछता है कि आप, जो इंटरव्यू है उससे पूछता है कि आप, यू हैव स्टार्टेड रिवोल्यूशन, आपको मजा आ रहा है? उसने कहा मैंने तो रिवोल्यूशन चाहा ही नहीं था, मैं तो उनके खिलाफ मैंने उन्हें गोली मारी जो मुझे बुरे लगे, रिवोल्यूशन तो लोगों ने स्टार्ट किया। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सारी मूवीज, ये जो स्टडी हमने करी पीयू की, जो बताती है 55% सपोर्ट्स द डिक्टेटरशिप, दीज ऑल आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, कोई भी चीज आइसोलेशन में नहीं हो रही है। एंड द राइज ऑफ नरेंद्र मोदी, आपका अरविंद केजरीवाल भी उसी केस का एग्जांपल है। अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी,
ये आपका विक्टर ऑर्बन, डोनाल्ड ट्रम्प, ये सारे जितने लीडर्स हैं ना, इनका राइज इट इज लिंक्ड डायरेक्टली टू दिस फिनोमेना, दिस हेट्रेड ऑफ इलीट। बात क्लियर है? तो अब समझ आया 58 अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टडी। आप कहीं भी लिख लेना, पेपर में बड़े मार्क्स मिलेंगे। आगे लिखो क्या लिखा है अपना, लास्ट क्या लिखी लाइन, पेपर पढ़ ले सर वही। By 50% supports military rule. ओके, बेसिक फाइनली लिखिए, बेसिकली द Pew research concluded, basically the Pew research concluded that the support for autocratic rule is higher in India. Autocratic rule is higher in India than in any other nation surveyed. सर एक Higher in India than in any nation surveyed. सर एक बात पूछ सकते हैं? हाँ अभी पूछो एक बार। देखिए सर, अभी का जैसे ट्रेंड देखा जाए कांग्रेस के बाद से अभी जैसे रीजनल पार्टी का इवोल्यूशन हुआ कैमरा है, सोच के बोलना। हाँ। बोलो। रीजनल पार्टी का इवोल्यूशन हुआ है, तो मतलब देखा है कि जैसे ये रिपोर्ट बता रहा है कि अथॉरिटेरियन स्ट्रॉन्गमैन लीडरशिप, लेकिन आज का अगर सिनेरियो देखा जाए तो लोग जो है रीजनल पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, नेशनल पार्टी को छोड़ कर। वो इलेक्शन की बात है सर, लेकिन फिर ऐसे क्यों हो रहा है कि स्ट्रॉन्गमैन ऐसे अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो नेशनल पार्टी को ऐसे ज़्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए। नहीं, व्यक्ति आप अगर गलत समझ रहे हैं। हमने क्या बोला, एक मसीहा चाहिए सबको। तो आप इस रीजनल पार्टी में देखिए कोई स्ट्रॉन्ग लीडर होगा, एक व्यक्ति होगा जिसके नाम पे इलेक्शन चलता है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नाम पे, केजरीवाल सरकार बोलते हैं, कोई आप सरकार नहीं बोल रहा है। मोदी सरकार बोल रहे हैं, बीजेपी सरकार नहीं बोल रहे हैं। ममता बनर्जी एक फीस पार्टी, मसीहा कांग्रेस, मसीहा चाहिए सबको। और यहाँ पर समझ है ना, तो डोनाल्ड ट्रम्प जैसे लोग क्या है, मसीहा ही तो बनते हैं, कहते हैं कि मैं आपको बचाऊंगा। बचाता कोई नहीं है, बट दे से आई एम सेविंग, आई एम गोना सेव यू। और रीजन इज पीपल हेट एलीट्स एंड दीज पीपल क्लेम आई एम आउटसाइडर। आप ये फिनोमेना ऑब्जर्व कीजिएगा, जितने भी आउटसाइडर्स हैं दे आर विनिंग इलेक्शन अराउंड द वर्ल्ड। इनसाइडर्स को बहुत कम वोट मिलते हैं, पीपल हेट देम, दे आर द पार्ट ऑफ एलीट। यस, किस चीज के? अरे इतनी हमने बकैती कर ली। नहीं, मतलब मेरा एक डाउट था। हाँ गो अहेड बोलिए। सर जैसे अरविंद केजरीवाल है अभी, तो उन्होंने क्या इलेक्शन वगैरह फ्री कर रखी है, तो इसका इकोनॉमी में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, बट स्टिल हो रही है ये चीज़। इसका इकोनॉमिक पॉजिटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट? दोनों। नेगेटिव किस सेंस में? फ्री बाय सर जैसे बहुत लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, उन लोगों को, कुछ लोगों को नहीं मिल पाती है ये चीज़। हाँ वो तो टारगेटिंग की प्रॉब्लम आती है, वो तो हर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है हमारी, हर स्कीम के साथ प्रॉब्लम आती है। और जो मतलब तो जो पे सर कर ये सकते प्रॉब्लम हैं, तो रिजर्वेशन के भी उनको साथ हो भी सकता है सर। आगे पहले मैं बोलूं, तो मतलब जो लोग पे कर सकते हैं वो लोग भी नहीं करते हैं, और जो लोग मतलब दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमी इम्पैक्ट होती है इस चीज़। मतलब यू आर सेइंग इट इज नेगेटिव इम्पैक्टिंग एज अ फ्रीबी स्टेट रिसोर्सेज खराब हो रहे हैं, जो अभी आर्गुमेंट चल रहा है मोदी जी का एग्रीकल्चर। जैसे स्कीम्स आती हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं उन लोगों को मिल जाती हैं वो, और एक जो मिडिल क्लास फैमिली का होता है वो कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, तो उन लोगों को उस चीज़ का फायदा नहीं होता स्कीम्स का। तो इस तरह से कुछ होना चाहिए ना कि हर एक को दिया जा रहा है। मतलब यू आर सेइंग कि सबको मिले स्कीम? नहीं, तो मतलब उन लोगों को मिलनी चाहिए जिन्हें जरूरत है। अच्छा, जिन्हें उन्हें मिलती है, जिन्हें जरूरत है, बट प्रॉब्लम इज जरूरत जिन्हें है ये कौन डिफाइन करेगा? सर जैसे बीपीएल बनाया गया है, ऐसे ही कुछ होना चाहिए ना। मतलब देखिए आपका कंसर्न तो जेन्युइन है कि जो अपने दम पे कर सकते हैं उन्हें क्यों सरकार सपोर्ट दे, कंसर्न जेन्युइन है। बट इस पे वी हैड अ डिबेट, जो फ्रीबी कल्चर की जो अभी इशू चल रहा है वो एक तरीके से नेगेटिव इशू है, नेगेटिव इशू, और उसके ओपोनेंट भी नेगेटिव है। द थिंग दैट यू आर सेइंग ना, अभी देखिए इस केस में मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ अरविंद केजरीवाल की फ्रीबीज पर कहना ही गलत है। जब इमेजिन कीजिए, जब 1 लाख करोड़ का एनपीए एक कॉर्पोरेशन का आप माफ करते हो, वो फ्रीबी नहीं है, लेकिन आपने गरीब को 100 रुपए का फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दी तो वो फ्रीबी है। आपने सीधी सी बात है ना, आप 7 लाख करोड़ का एनपीए माफ करने को तैयार हो, तब आप फ्रीबी नहीं बोलते। दैट इज राइट, एक टर्म होती है, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, राइट ऑफ बोलते हैं, राइट ऑफ। व्हेन यू राइट ऑफ
द लोन ऑफ अ कॉर्पोरेशन, वो पे नहीं कर पा रहा, आप उसे बुक से हटा देते हो, उसे बोलते हैं राइट ऑफ, इकोनॉमिक टर्म है। तो ये बोला जाता है जब आप एनपीए को आप राइट ऑफ करते हो ना बुक से, बेसिकली माफ मान लीजिए, तो दैट इज कॉल्ड राइट ऑफ। तो ये राइट ऑफ है, लेकिन आपने गरीब को 100 रुपए की फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दी तो वो फ्री भी है। इट्स अ कल्चरल इंपोजिशन ऑफ कैपिटलिज्म। अगेन देखिए इस कॉन्टेक्स्ट में हमने इस पे डिबेट की थी एक्चुअली सैटरडे क्लास में फ्री बीज के ऊपर, बिकॉज मोदी जी हैज यूज्ड द वर्ड रेवड़ी कल्चर। उन्होंने बोला अभी उन्होंने बोला है कि वो पार्टियां जो रेवड़ी बांट रही हैं, कहने का मतलब ये था फ्री बी, रेवड़ी यू नो छोटी सी वो होती है, वो खाने वाली होती है, हाँ फिर बड़ी मजेदार लगती है वो, ठीक है। बेसिकली उन्होंने बोला इस तरह रेवड़ी कि आप फ्री लैपटॉप लो, फ्री बाइक लो, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पेट्रोल। वो ये हुआ था अरविंद केजरीवाल वेंट टू गुजरात, ही प्रॉमिस समथिंग, तो उसको काउंटर में बोला गया था रेवड़ी का, तो उस पर डिबेट शुरू होगी, ठीक है। बट द थिंग इज इस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा गलत है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज अभी ऑलरेडी आपका क्या चल रहा है, इकोनॉमिक डाउनस्लाइड चल रहा है। अगर आप किसी की जेब में 2 रुपए भी एक्स्ट्रा छोड़ेंगे ना तो वो उससे कुछ खरीदेगा। डिमांड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट करंट पॉइंट ऑफ टाइम, आवर इकोनॉमी इज डाउनस्लाइडिंग। इस पॉइंट पे डिमांड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी इकोनॉमिक डायमेंशन में बढ़ जाता है। रिमाइंड रखिए कि डिमांड क्रिएट सप्लाई। अगर मैं एक जूता डिमांड करूँगा कोई बनाएगा, जो बनाएगा वो किसी को एम्प्लॉयमेंट देगा, उसे वो सैलरी देगा, वो व्यक्ति फिर कुछ खरीदेगा। तो इट्स अ वर्चुअस साइकिल। लेकिन अगर सरकार आप मान लेते हैं, सरकार आपको पेट्रोल इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक्स्ट्रा चार्ज करती है, हैवी चार्ज करती है, तो आपकी जेब में पैसा नहीं बचेगा। आप फिर कहेंगे नहीं भाई सरकार पे जा रहा है, सरकार से रोड बनाएगी, बिल्कुल से। लेकिन फिर सरकार उसी पैसे से यस बैंक को भी बचा रही है, उसी पैसे से वो 10 करोड़ जो लोन माफ हो रहा है वो इन्फ्यूज करना पड़ता है बैंक में। इसे बोलते हैं, आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाएगा, इंद्रधनुष स्कीम। इंद्रधनुष स्कीम है, उसमें सरकार इन्फ्यूज कर रही है पैसा बैंकों में टू टाइड ओवर एनपीएस। सो करेंटली आई विल जस्टिफाई कि जो फ्री दिया जा रहा है, आप इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा तो आपको एक चीज पढ़ाई जाएगी, हेलीकॉप्टर ड्रॉप। पढ़ा है आपने हेलीकॉप्टर ड्रॉप, मिल्टन फ्रिडमैन का। तो बेसिकली व्हाट इज द आइडिया, ही सेड जब इकोनॉमिक क्राइसिस आए ना तो डिमांड होती नहीं मार्केट में, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक क्राइसिस में व्हाट यू शुड डू, स्पेंड मोर। पर आप करते क्या है, सेव मोर, क्योंकि वो तो हम सबकी टेंडेंसी टू सेव आवरसेल्फ। अब उससे क्या होता है, पहले डिमांड नीचे जाती थी, आपने सेविंग और शुरू कर दी तो डिमांड और स्लप करने लगी, और सेविंग भी आप अपने एसेट्स में कर रहे हैं। वो पैसा मार्केट में आना चाहिए था, पर आप डिमांड, आप मान लीजिए आपको आज आपने डिसाइड किया था मैं क्लोथ खरीदूंगा, लेकिन आपने देखा इकोनॉमी बुरी चल रही है, जॉब का कुछ पता ही नहीं लग रहा, क्या पता ना हो कल जॉब मेरे पे, तो आप वो क्लोथ नहीं खरीद के जेब में रखोगे या कहीं रख लेते हो, क्या पता कल जरूरत पड़े। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपने जो डिमांड घट रही थी उसे और घटा दिया। उस पॉइंट में मिल्टन फ्रिडमैन सजेस्टेड कि हेलीकॉप्टर ड्रॉप, सरकार पैसे को प्रिंट करे, हेलीकॉप्टर पे ले जाए, उड़ाए लोगों के ऊपर। मेटाफोरिकली बोला था उसने। लॉजिक है कि लोगों के हाथ में पैसा रखो, ओवरनाइट मनी। अगर आपके हाथ में पैसा होगा तो आप डिमांड बनाओगे, डिमांड बनाओगे तो कॉर्पोरेशन आएगी। ये जो आप पॉइंट कहते हैं ये मैंने पढ़ाया था एक्चुअली 2020 में भारत सरकार ने बजट में कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया, जिससे भारत सरकार को 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। लॉजिक क्या था, लॉजिक वाज कि कॉर्पोरेट सेक्टर विल हैव मोर मनी, दे विल इन्वेस्ट, बट अगेन स्टूपिडिटी इज दैट बिना डिमांड के मैं क्यों इन्वेस्ट करूंगा भाई। कल बैंक मेरे पास, मान लीजिए कल बैंक आपके पास आके कहती है कि ये लो भाई 1 लाख रुपए ले लो, वो कहेगी मैं आपसे इंटरेस्ट भी फ्री ऑफ इंटरेस्ट 1 लाख रुपए ले लो, मुझे 2 साल बाद देना, जो बिजनेस करना है करो। आप कहोगे भाई मेरे को जूते बनाने आते हैं, कोई जूता खरीद ही नहीं रहा आज के समय में, तो आप लोगे 1 लाख रुपए, क्योंकि आपको 2 साल बाद वापस करना है। पर अगर आपको शू बनाना बहुत अच्छा आता है और इस समय शू की बहुत डिमांड है मार्केट में, तो आपको अगर अपना घर गिरवी करके लोन लेना पड़े ना, आप ले लोगे, बस आपको पे कर दोगे यार, डिमांड ही इतनी है मार्केट में। दैट वाज द प्रॉब्लम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉस्ट 1 लाख करोड़ रुपीस इन 2020 बजट, बट द प्रॉब्लम वाज इट वाज नॉट द कॉर्पोरेट सेक्टर डिड नॉट इन्वेस्ट, क्योंकि डिमांड ही नहीं तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूंगा। उसके बाद इंडिया टुडे की रिपोर्ट आती है उसी साल, कहती है कि कॉर्पोरेट के पास ऑलरेडी 5 लाख करोड़ पड़ा था एक्स्ट्रा, तो जो लोग 5 लाख करोड़ इन्वेस्ट नहीं कर रहे वो आप 1 लाख करोड़ क्यों इन्वेस्ट करेंगे। बेटर ये रहता कि वो 1 लाख करोड़ सरकार लेती, या तो लोगों को डायरेक्टली हाथ में देती, डीबीटी कर देती सबको, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करती, उन पे पैसा आता, वो कुछ खरीदते। माय पॉइंट इज डिमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट।
इस पॉइंट पे आई विल जस्टिफाई केजरीवाल लॉजिक ऑफ गिविंग फ्री इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर। पहला तो आपकी देखिए जो बेसिक लोग हैं वो कवर हो गए, क्योंकि सबको फ्री इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती है, 200 यूनिट्स की लिमिट है, उसके ऊपर पूरा बिल देना होता है, ठीक है। वाटर में भी 20 किलो लीटर की लिमिट है, उसके ऊपर पूरा बिल देना होता है। तो अ लॉट ऑफ पीपल आर कवर्ड, और जिनके हाथ में पैसा बचेगा वो भाई जेब में लग के थोड़ा घूमेंगे, कुछ ना कुछ खाएंगे और उससे इकोनॉमी बूस्ट होगी। और उससे एक बार इकोनॉमी बूस्ट हो जाए फिर आप हटा लो। आई थिंक जब इकोनॉमी बूस्ट है, जॉब्स अच्छी आ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत हाई है, तब आप धीरे धीरे फ्रीबीज कम कर जाओ। ठीक है, फ्रीबीज में देयर बोथ काइंड ऑफ आर्गुमेंट्स आर देयर, ठीक है। अगेन सारा लॉजिक समझ में आया, हमने सारी की सारी बकैती कर ली मेरिटोक्रेसी पे, इतनी लंबी वाली। यस, यू हैव एनीथिंग टू से? क्या कह रहे हो, मोनोलॉग अच्छा था? ओके, लास्ट पॉइंट हमने क्या लिखा था, कुछ टेल मी। ऑटोमेटिक रूल इज हायर इन इंडिया देन इन अदर। एक बात बताओ तुमको, तुमसे वो राजेश सर वाली बात हुई थी ना तुम्हारी? यस सर। तुम भी थे ना, ही वाज द पर्सन ना। बात काटा मत करो, कोई बोल रहा हो, वो अभी पता मुझे लग रहा था उठ के आएगी पीएल देगी तो शकल में लिखा हुआ था कि वो पढ़ने वाला है, इसलिए बात काटा करो। नहीं सब बैड हैबिट, बट आई एम सेइंग इज घर में भी अगर आप ऐसे ही बात काटोगे तो ओवर टाइम पीपल बुरा मान जाते हैं। और इसमें एक चीज इंटरव्यू में ध्यान रखना, ये चीज नहीं, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू। इंटरव्यू में थोड़ा ध्यान रखना कि जो 5 लोग हैं ना उसमें क्रिटिसाइज नहीं करना। जैसे मान लो कोई बंदा पूछ रहा है और बीच में काटना मत, लेट देम से एवरीथिंग। देखिए दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ लीडर, ही इज अ गुड लिसनर। ये हमेशा याद रखिए, लीडर हमेशा गुड लिसनर होता है। स्पीक बोलने वाला तो हर व्यक्ति बोल सकता है। ऐसे वो जैसे बोली ना कि यही कि बहुत लोग को जरूरत नहीं है, मेरे दिमाग में भी आ गया रिजर्वेशन में भी तो यही केस होता है, वो भी बोलता तो है यू कुड हैव वेटेड ना कि वो कंप्लीट कर दे अपना पॉइंट। नहीं ठीक नहीं है काटना, क्योंकि इससे प्रॉब्लम हो सकती है इंटरव्यू में। क्योंकि एक बार देखिए हैबिट की बात क्या होती है, वो इजीली खराब नहीं खत्म नहीं होती। उस वक्त आपको तो लगेगा आपका नॉर्मल बिहेवियर है, उन्हें पसंद नहीं आया है और वो 1 मार्क्स भी ऊपर नीचे कर देते हैं तो 1 मार्क्स से लिस्ट बाहर हो जाते हैं। नहीं हम सही है, ये हैबिट डालो कि लिसन फर्स्ट। कोई पॉइंट बोल रहा है तो बोल, चाहे दुनिया में कितना भी घटिया पॉइंट हो वो खोटा से खरी बात है। मतलब हो सकता है कि वो बिल्कुल स्टूपिड पॉइंट है, एक बार वो व्यक्ति बोल ले फिर आप काउंटर कर लो। वो चक्कर है, मुझे लगता है तो आज तक ज्यादा देख रहे हो। नहीं बात नहीं सर, क्योंकि आज की टीवी में यही तो होता है, वो इधर उधर लड़ रहे होते हैं, कोई इसी बात सुनना चाहता है, किसी को कुछ समझ ही नहीं आता। क्या वही तो दैट इज द पॉइंट ना। आप न्यूज़ चैनल देखते हो, अगर आप देख रहे हो तो आपको भी तो ऐसा लगता है कि यार क्यों लड़ रहे हैं, एक पॉइंट तो सुनने दो मेरे को। 3-4 साल से ऐसा लगता है 8 कुत्ता एक साथ बैठ कर खाओ के यार। बट दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ सिस्टम, वो किसी रीजन से ये करवा रहे हैं, ये नहीं कि उनको मजा आ। मेरे को पता है टीआरपी इज वन पार्ट ऑफ दैट। लेकिन अब ये उसके सब लिए नहीं समझ में आता सर, लोग टीआरपी मतलब बढ़ जाता है, कितने लोग बैठ कर के देखते ही होंगे। मजा भी लोगों को आता है, वो असल में समझने के लिए नहीं आता। अरे वो कुश्ती नहीं देख पाते ना तो वही देख लेते हैं। अब आप डिबेट सब का निकले स्टैंडर्ड आप फैन देखिए कितना गिरता जा रहा है, तो गाली गलौज भी कर देते हैं लोग नेशनल टीवी पे। ये चिरकुट ऐसे से सर एक क्वेश्चन था इंटरव्यू में जो पूछा गया था, जैसे जो भी वेब सीरीज आ रही है उसमें एब्यूजिव लैंग्वेज यूज हो रही है और बहुत फेमस भी हो रही है, तो इससे क्या पता चलता है सोसाइटी को एक अच्छा लग रहा है क्या? सीरीज में आपका एब्यूजिव लैंग्वेज हो रहा है, पीपल आर लाइकिंग इट। हाँ उस पर कमेंट भी होता है, कहता है एक गाली दो 10 व्यू लो, ठीक है। तो उसमें पीपल आर लाइकिंग इट नहीं, बट आई कैन सी जो आजकल आप देखिए इंडी क्रेड का जमाना सा लग गया है। मतलब पीपल आर लाइकिंग रॉ थिंग जो डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। वो सुपरफिशियल मोरालिटी चली गई कि आप फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति भूखा मर रहा हो, उसे आप मूवी में दिखा रहे हो ये दुनिया चमक रही है, ये चमक रही है, वो चमक रही है। जैसे पॉपुलर एड भी था चश्मे का, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर पार्टी जो कुछ कहती है कि हम स्वर्ण युग में आ गए हैं, तो उसके लिए गरीब व्यक्ति आता है, बहुत गरीब होता है, ठीक है, उसका कुछ खाने पीने नहीं मिलता, वो कहता है कि यार मेरी बुरी हालत है, तो उसे चश्मा देखता है, कोई चश्मे से देखता है, उसे डेवलपमेंट दिखती है, तो वो चश्मा मीडिया है। लोग ऐसे भी सर लिखो ऐसे जैसे आज सोच रहे थे डीपीएससी शुरू करने की, इतनी बड़ी बात हो गई। एनीवे इट्स अ वेरी गुड थिंग, आप 10 पेपर में तो लिख ही लो। आपका देखिए दिस डिबेट इज वेरी यूजफुल, आप कहीं भी लिख देना,
एथिक्स में पेल के रखना, बड़ी बड़ी मोरालिटी छाप देना, चाहे मन में मानते ना हो, ठीक है, लेकिन वह छाप देनी है। एनीवे, राइट इट डाउन। इंडियंस को सर मिलिट्री रूल होता क्या है सर, ऐसा भाई पता नहीं है। मैं भी बोलने वाला था भाई, लिख लेते हैं यार, बहुत हो गया, डिबेट बहुत ज़्यादा हो गई है। एनीवे, सो लास्ट टाइम वाज कि फाइनली प्यू रिसर्च कंक्लूडेड कि इंडिया में सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब आगे लिखिए, काउंटर टू दैट द RMIT study, counter to that the RMIT study has highlighted that except for Rwanda and Singapore, there is no single example where the presence of autocratic government led to a prosperous economy. आगे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू क्रिस्टोफी जेफरलॉट, मैं नाम बता रहा हूँ, ऑल्सो अकॉर्डिंग टू क्रिस्टोफी जेफरलॉट, also according to Christopher Jaffelot, this मतलब जो ऊपर प्यू रिसर्च है उसकी बात हो रही है, ठीक है। This is an elite reaction समझे ना, जैसे आपने अभी फ्रीबीज के बारे में बोला, इट्स अ एलीट पर्सपेक्टिव। ये एलीटिस्ट पर्सपेक्टिव है कि मैं 1 करोड़ों की कार में घूमता हूँ तो गरीब को 100 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी फ्री क्यों मिली, क्योंकि उससे मेरी कार के लिए जो रोड बना है वो खराब बना है। जो डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव है, इट्स वेरी फॉर पीपल टू पीपल। आई हैव ऑलवेज सेड, एक वेस्टर्न पर्सपेक्टिव होता है डेवलपमेंट का, बेटर रोड बेटर बिल्डिंग्स। एक गांधीयन पर्सपेक्टिव है, सर्वोदय। फॉर गांधी, इवन इफ देयर इज वन हंग्री पर्सन, देन सच डेवलपमेंट इज नो डेवलपमेंट एट ऑल। अगर कोई भूखा सो रहा है, कोई किसी और प्रॉब्लम में सो रहा है, तो दैट पर्सन इज, ऐसे डेवलपमेंट का क्या फायदा। सर जैसे कि मतलब आप बोल रहे हैं, ऐसे अगर वेलफेयर स्टेट ऑफ यूनाइटेड किंगडम का अगर बात करें तो उसमें वेलफेयर स्टेट में जब क्राइसिस आया था तो एक लिबरल लोग जो थे ये डिबेट दे रहे, एक ये पॉइंट दे रहे थे कि जो आप फ्री बाइज दे रहे हैं, ये वेलफेयर फंक्शन दे रहे हैं, तो ये मतलब मार्केट का एक तो इनविजिबल हैंड है, उसको काम करने से थोड़ा रोक रहा है। और दूसरा बात है फ्रीडम ऑफ चॉइस के बारे में रोक रहा है कि सर लोगों को चूज करने दीजिए कि लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए। बेसिकली व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट न्यू लिबरलिज्म। हमने पढ़ा था ना, वेलफेयरिज्म से न्यू लिबरलिज्म में स्विच आया था, उसकी बात कर रहा है। दैट इज नोन एज थैचरिज्म। एक्चुअली थैचर वाज द प्राइम मिनिस्टर जब ही इज टॉकिंग अबाउट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। थैचर इनिशिएटेड दैट रिफॉर्म। न्यू लिबरलिज्म इज मार्केट फंडामेंटलिज्म। न्यू लिबरलिज्म मार्केट फंडामेंटलिज्म, जैसे हमारी करंट सरकार है, our current government is market fundamentalist. It believes in privatization. हर जैसा कर ना, और more choices. Again, it's an elite perspective I'm saying ना. जो freebies वाली बात है, it's an elite perspective. Social perspective नहीं है। गांधी के हिसाब से freebie नहीं है। गांधी के हिसाब से वो welfare है, और कैपिटलिस्ट के हिसाब से वो freebie है। और दूसरा बात है सर, फ्रीबीज से मतलब मेरे को गरीबी हटेगा, क्या गारंटी है इसका? किससे? फ्रीबीज से इकोनॉमी की सेंस तो अभी बना रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, किसी को खाने को तो मिल रहा है। सरकार पीडीएस क्यों रखती है स्कीम? क्योंकि जो व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता उसे खाना मिलना चाहिए। दैट्स अ रिस्पांसिबिलिटी। अगेन आर्गुमेंट फिर कह रहा हूँ, फ्रीबीज नोबडी इज जस्टिफाइंग, बट इकोनॉमिक असिस्टेंस ऑफ द स्टेट इज कंपल्सरी।
इस केस में तो खासकर जब इकोनॉमिक क्राइसिस है तो ये चीज़ें आपके जेब में पैसा बचा रही हैं विच यू विल यूज फॉर इकोनॉमी को बूस्ट करने के ही काम आएगा। बाकी क्या पीडीएस ना मिले तो बच्चे मरेंगे भूखे, और बच्चे जब भूखे मरेंगे तो आपको पता नहीं होगा। या टोल्ड यू ना, इंडिया में बेस रिपोर्ट हाईलाइट्स दैट इंडिया में इस समय मैंने बोला नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 40% ऑफ इंडिया चिल्ड्रन आर मेल न्यूट्रिशन। उसमें किसकी गलती है? 75 साल की आज़ादी में अगर आप अपने बच्चों को खाना नहीं दे पाए फिर आप अपने को विश्व गुरु बोलते हो, ये कैसा विश्व गुरु है? दैट इज गांधीयन पर्सपेक्टिव। गांधी ऑलवेज टॉक अबाउट सर्वोदय। अगर एक भी व्यक्ति, उसका क्या बेसिकली सैड, अगर एक भी व्यक्ति इन द मान लेते एक लाइन है उसमें अगर एक भी व्यक्ति डिसएम्पावर्ड है तो वो डेवलपमेंट नहीं है। दैट्स गांधीयन पर्सपेक्टिव। बाकी एलीट पर्सपेक्टिव तो है, ठीक है, वही मैं बोला था। दिस इज एन एलीट रिएक्शन, दैट इज व्हाट ही हैज सेड। दिस इज एन एलीट रिएक्शन कैमोफ्लेजिंग। लिखिए भाई, दिस इज एन ना दिस इज एन एलीट रिएक्शन कैमोफ्लेजिंग। मतलब समझते क्या मतलब छुपाना, किसी और की तरफ दिखना पड़ना, समझते कैमोफ्लेज मतलब? हाँ, मिलिट्री में जैसे कैमोफ्लेज ड्रेस। हाँ, जैसे कैमोफ्लेज मतलब किसी और तरह दिखना। मान लीजिए इफ आई स्टार्ट, हाँ मान लीजिए कोई लड़का है लड़कियों के कपड़े पहने हुए तो ही इज कैमोफ्लेजिंग टू बी अ गर्ल। अब समझ में आया कैमोफ्लेज? सो कैमोफ्लेजिंग इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, कैमोफ्लेजिंग इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, but it inhibits development by restricting its benefit. But it inhibits the development by restricting its benefits to reach to everyone. Full stop. As a result we get rural urban divide in which agriculture is left for markets, but a urban road is made by government. Agriculture is left for market, but an urban road is made by government. मतलब सरकार एक्सप्रेस वे अपने पैसे से बना सकती है, लेकिन जब एग्रीकल्चर की बात आती है तो क्या बोलती है? फ्री मार्केट। फार्म लॉज में ये तो बात थी, गवर्नमेंट वाज सेइंग कि यू विल हैव वेरियस मंडीज, प्राइवेट मंडी, जाओ बेचो। लेकिन जब रोड बनाने की बात आती है तब आप बना रहे हो। अगर डेवलपमेंट दोनों केस में तो रोड भी छोड़ दो, फिर रोड भी मत बनाओ, जो बना सकता बना लेगा। पेट्रोल बस वो उसमें गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट इज सेलिंग ऑल द वेल फंक्शनिंग नेशनल हाईवेज अगेन, जिन पे आप टोल दे चुके हो वो दोबारा बिकेंगे, वहाँ पर दोबारा टोल लगाया जाएगा, आपको दोबारा वसूल किया जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि इनकम टैक्स एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ाने में प्रॉब्लम आती है, तो ये बेटर मैकेनिज्म। एनीवे दिस इज हाउ इट इज। सो मेरिटोक्रेसी पे आप क्लियर हैं? अगेन नेवर एवर सपोर्ट अ मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी इलीट आर्गुमेंट है। वी वांट अ डेमोक्रेसी, ताकि जब गरीब का रिप्रेजेंटेटिव भी अगर पावर में आ जाए तो कुछ बन सके। देखिए एक कॉमन चीज नोटिस कीजिएगा, व्हेनेवर देयर इज अ सोशलिस्ट इन पावर, तो वो हमने बात की फ्री बीस देखने का तरीका है। तो इसे इकोनॉमिक स्टिमुलस भी तो कह सकते थे, बट फ्री बीस। लेकिन अगर आप बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन का लोन माफ करो तो राइट ऑफ। टर्मिनोलॉजीज का फर्क होता है, ठीक है। हमने बहुत बकैती मान ली इस पे, ठीक है। कुछ रह गया, कुछ नहीं बताना। आरएमआईटी की स्टडी होगी ना हमारी, ठीक है, दैट इज इट। लिखो फिर जल्दी से, बाकी खत्म करते हैं। अब आपके वैसे आप कवर कर सकते थे, कोई नहीं लिख लीजिए। राइट डाउन आर्टिकल, few articles that we have left, उसे लिख लीजिए। These articles no longer are in function, तो इसलिए ज़्यादा important है नहीं। कभी थे important, अब नहीं है, because we do not have right to do this।
वो जब ब्रैकेट के पीछे तब की बात अलग है। तो बस लिख लो इसे, आप लक्ष्मीकांत में पढ़ लेना, कुछ खास है नहीं इसमें। लिखिए आर्टिकल 31A, 31A, 31B एंड 31C। मैं इनका लॉजिक बता देता हूँ बेसिकली। डू यू रिमेंबर हमने बात की थी इसका मिनिमम मिल्स केस, सॉरी मिनिमम से पहले केशवानंद भारती केस की हमने बात की, 25th अमेंडमेंट हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी। एक्चुअली मैं बता देता हूँ क्या था। There was an amendment 25th. We did talk about in basic structure of it. 25th अमेंडमेंट में पार्लियामेंट में देखिए दो चीजें होती है, एक होता है आपका फंडामेंटल राइट्स, अदर इज वी हैव DPSP. Fundamental rights are enforceable in the court of law. DPSPs are not. तो इसमें basically we talked about Article 39 clause B and C. Article 39 clause B and C they deals with basically deconcentration of wealth. मतलब wealth जो है concentrate not distribute हो सके, आप socialist principle. तो when this case went to Supreme Court under 25th, Parliament provided that this is like this, that 39B and C are more powerful than fundamental rights. The case went to Supreme Court in Keshwanan Bharti. In that Supreme Court upheld this. So basically, fundamental rights are always superior to DPSP except 39B and C. तो इस अमेंडमेंट के तहत एक्चुअली आपका 31C को लाया गया था, ठीक है। 31C था, उसको मैंने इसलिए नहीं बोला कोई जरूरत नहीं। क्लियर? अब कुछ नहीं कि इसमें आपको क्या करना है, घर पे जाके बस पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है। इसमें क्या बस इतना पढ़ना कि 39B A B C में क्या फ़र्क है। थोड़ा C मैंने आपको बताया, ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि B और A और B को लाया गया था बेसिकली उस समय पे लैंड रिफॉर्म्स के लिए। बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स के लिए हमें जमींदारी अबॉलिश करनी थी और उस समय फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था। तो उस कॉन्टेक्स्ट में वी ब्रॉट टू थिंग्स, एक था आपका 31A एंड 31B. 31A provided that there are certain state laws for land, state laws for land. If they violate fundamental right to property, तब भी वो justified होंगे if the president signed. उस कॉन्टेक्स्ट में था। Again I am saying these articles are not important today, but फिर भी prelims के लिए डिफरेंस याद रखिएगा, बाकी मेंस के लिए जरूरत नहीं कुछ खास, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी तो है ही नहीं वो हमारे पास, ठीक है। सेकंड था 31B. इसमें भी प्रोवाइडेड अ शेड्यूल बाय द नेम ऑफ 9th शेड्यूल। शेड्यूल आप समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में वी हैव प्रीएम्बल जो इंट्रोडक्शन होता है, देन वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन वेयर देयर आर वेरियस आर्टिकल, उसके बाद शेड्यूल्स। शेड्यूल्स आर काइंड ऑफ अटैचमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन दैट 39B में 9th शेड्यूल, दिस शेड्यूल प्रोवाइड्स दैट इफ any act if it is placed in this schedule then it is beyond judicial review. What is judicial review? The power of judiciary to check any of the act or policies of the government to see if they are consistent with the constitution or not. तो इसमें बनाया गया कि 31B में डाला गया कि 9th schedule is there, any act put in this 9th schedule is beyond judicial review. बेसिकली इट इम्पिंजेस ऑन योर फंडामेंटल। मान लीजिए तमिलनाडु सरकार डिसाइड करते है किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है ही नहीं, एंड देन इफ दैट इज प्लेस्ड इन दिस शेड्यूल तो इट विल बी बियॉन्ड जुडिशियल। जुडिशरी डिसाइड नहीं कर सकती फिर उसके ऊपर, बट वी नो जुडिशरी इज गिवन द प्राइम रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली फंडामेंटल राइट। हु इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स? सुप्रीम कोर्ट। हु इज द प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? इनको पता होना चाहिए, आपकी तो क्लास में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट या प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है? प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? ओथ कौन? हाँ, प्रेसिडेंट। हमने बात की थी, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर द ओनली टू पर्सन हु टेक्स द ओथ टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। उनके अलावा कोई वो ओथ नहीं देता। लेकिन जो फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर है वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज ऑफ आर्टिकल 32 जिसमें हमने रिट समझी थी ना, इसलिए। ठीक है, दोबारा हम रिवाइजिंग। सो देखिए 31 ये समझ गए, बेसिकली सर्टेन एक्ट मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर टू टेक प्रॉपर्टी बेसिकली, इफ दे आर साइंड बाय द प्रेसिडेंट देन दे कैन वायलेट
फंडामेंटल राइट्स, स्पेशली राइट टू प्रॉपर्टी, जो उस वक्त था, अब तो नहीं है। 31B में क्या है, 9th शेड्यूल, इफ एनी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, मान तमिलनाडु गवर्नमेंट डिसाइड्स कि एनीवन हु सेज एनीथिंग टू जयललिता विल बी किल्ड, मतलब एग्जीक्यूट। Jayalalitha is a very popular leader in Tamil Nadu. If anyone says anything against Jayalalitha, that person will be killed. It's a violation of Article 21. So, if Parliament put that in 9th schedule, it will be protected beyond judicial review. तो protect हो जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम है, तो सुप्रीम कोर्ट इन IR Polio केस, चेक कर लेंगे। In IR Polio case, Supreme Court said that 9th schedule is not the black hole of the Constitution. Black hole पता ना, कुछ जिसमें anything goes inside the black hole never comes back, तो वैसे ही है। इसने बोला ये ब्लैक होल नहीं है कि इसमें जो भी तुम कानून डालोगे कुछ भी नहीं दिख सकता सुप्रीम कोर्ट को। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट said that 9th schedule is no longer effective. तो इस समय कॉन्स्टिट्यूशन 9th शेड्यूल है पर इफेक्टिव नहीं है। तो अगर पार्लियामेंट कुछ भी इसमें रखती है तो वो भी जुडिशियल रिव्यू को सब्जेक्ट होगा, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोले, 9th शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट ने बोला जुडिशियल रिव्यू इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो फिर आप कैसे हटा सकते हो? ठीक है, बाकी आप पढ़ लें, इसमें अगेन कुछ खास नहीं है क्योंकि आपका राइट टू प्रॉपर्टी है ही नहीं है। अगर होता तो बात अलग थी। और 31C इंपॉर्टेंट था तो हम उसे डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में प्रीवियस क्लास में। ठीक है, तो विद दिस नोट आप फंडामेंटल राइट्स हैं। आपको कौन कौन सा आर्टिकल जाके पढ़ने हैं? 31A-B-C मैंने पढ़ाया डिटेल में, AB को थोड़ा देख लेना, उसमें डिफरेंस देख लेना, लॉजिक मैंने आपको बता दिया है। एंड आपका 35 और 33 में कुछ नहीं। अगेन आई एम सेइंग 33 बेसिकली रेस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट फॉर आर्म्ड फोर्सेस, और 35 आपका बेसिकली एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक लॉस।